बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि अल्लाह के पाक नाम से we started the session. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Holy Quran, Inna Allah la yughayyiru ma bi qawmin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah Almighty does not change the destiny of people, the fate of people, until and unless they change themselves. Allah is knowing, Allah is clear enough. खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको खुद ख्याल अपनी हालत के बदलने का। First of all, my note of gratitude to Allah Almighty who gave this opportunity. We are here to learn because amid the COVID, we don't know what will happen to everybody. COVID अभी भी चल रहा है, second wave. अल्लाह ताला आप सबको अपनी अमान और अपनी हिफाजत में रखे। My second note of gratitude to SM Imran sir, the Vice Chairman of the DA. He's a really nice guy, having very compassionate and empathetic heart. And we talked about many times because I know him for the last 10 years, SM Imran. I know his father, SM Munir sir, or Tanveer sir. पिछले 10 साल से मेरा कराची बहुत आना जाना होता है। I talked about the HR and learning and development. In the last 2 years, he is here in earlier. And we were talking the common points for the most important asset for any organization, either public or private, and that is the human resource. And unfortunately, in Pakistan, especially particularly in public sector, the most neglected area is human resource. And the people, especially, you. We take care of our assets, but we do not take care of the real assets, that are the people. Oh, Imran Sahab abhi nahi hai, because he got engaged, he committed me that I will be there, because I requested him to be having your presence, that will make the difference. But for please sir, thank you very much sir. You grace this training learning board. And the third my note of thanks to the team, the Mahmood, Parkli sir and other guys, especially the participants, you are here. The senior managers of LTF is one of the very vital and critical organization of Government of Punjab. And last not least, the time you people are here, we respect the time because it is almost 10:03. और अर्गिल साहब हमारे पास 4:30 तक टाइम है सर, इज इट ओके सर? हमारे पास एक्चुअली आई रिक्वेस्टेड फॉर 1 hour and 30 minutes, 90 मिनट का सेशन, उसमें क्वेश्चन आंसर भी हम कर लेंगे, और कोई 5-10 मिनट ऊपर नीचे हो जाए तो आप ही दीजिएगा हम उसको, डिपेंडिंग अपॉन योर क्यूरियोसिटी, डिपेंडिंग अपॉन योर लर्निंग एपिटाइट, हाउ मच यू आर हंग्री फॉर द लर्निंग. तो आई एम हियर, मेरा कोई ऐसी बंदिश नहीं है, टिल 5 I will be available here for the question answer sessions for the tea break. Okay, this is just the few SOPs I am sharing before I just kick off my presentation. The topic is very critical. We unanimously decided with Fatih Saab, Mahmood Saab, admin manager, and the other SM Imran Saab, and we concluded a few things. Ijaz, please focus in this first presentation because this is the first session, and the later we will have the subsequent sessions, inshallah. We concluded about excellence. Actually, we do not know the concept. We are very think ourselves as mediocres. But today we will talk about the concept of excellence at workplace, especially customer service, especially team building, especially the concept of beyond your duty, working beyond your duty, whatever your JDs and key performance indicators. And the second SOP today is a time we already decided, and the third SOP is we will be bilingual, trilingual, Urdu में बात करना चाहें, अंग्रेजी में करें, पंजाबी में करें. Because my point of view, the most important thing is the transformation of the behavior and the transferring the knowledge about the customer service and especially the excellence at workplaces. तो ये एक मेरा रिक्वेस्ट होगी, 3-4 चीज़ें हैं. और my style is very local, very colloquial, very with also just a comic relief with a sense of humor apart from all the seriousness and the content especially. और ये जो स्लाइड्स हैं ये सारा कंटेंट है जो आपको वैसे ही मिल जाएगा. मैं महमूद साहब, फारकी साहब को सर शेयर कर दूंगा, तो आपको डिजिटली भी मिल जाएगा, फिजिकली भी मिल जाएगा. और अगर कोई अच्छा पॉइंट मिले तो पेंसिल वगैरह अपना महमूद मेक श्योर कि आप सबके हाथ में पेंसिल होनी चाहिए, कागज़ होना चाहिए,
या मोबाइल ऑन कर लें, तो कोई भी अच्छा पॉइंट तो उसकी फीडबैक जिसे कहते हैं या इसकी की पॉइंट्स या की लर्निंग्स आप रख लें। माइट भी ये छोटा सा सेशन बहुत बड़ा क्लेम तो नहीं कर सकता कि जी 1 घंटे में बड़ा कुछ हो जाएगा, एलडी बदल जाएगा। आई डू नॉट हैव सच क्लेम्स। हाँ, ये हो सकता है कि पर्सनली अगर आपको कोई आपकी फैमिली के रिलेटेड कोई ऐसी चीज़ चेंज आ जाती है अपने बच्चों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, क्योंकि बेसिकली आई एम द प्रोफेशन ऑफ लर्निंग एंड स्पेशली काउंसलिंग, तो माइट भी कोई ऐसी चीज़ आपकी पर्सनल डेवलपमेंट में काम आ सकती है जो अल्टीमेटली लीडिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट। तो दैट इज़ माई टेक कि आपको कोई चीज़ अच्छी लगे तो उसको लिख लीजिए, और एंड पे हम आपसे फीडबैक भी लेंगे ताकि फॉर माई इम्प्रूवमेंट, फॉर योर इम्प्रूवमेंट। तो दीज आर द जस्ट एक प्रीएम्बल था। जैसे कि मैंने थोड़ा सा तारुफ करा दिया, मैं थोड़ा सा इसलिए 2-4 जुमले बोल दूं कि मैंने 17 साल खुद सिविल सर्विस में यहाँ आपकी जो है सरकारी इदारों में काम किया है। तो इसलिए मैं कोई बाहर से कोई आपको कोई साइंस और रॉकेट साइंस शेयर करने नहीं आया कि जनाब जी के अमेरिका में ये होता है तो फलां जगह ये होता है, या एंग्रो में ये होता है, या पेप्सी कोका कोला में ये होता है। वो बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात ज़रूर करेंगे हम, उसकी मैनेजमेंट की लीडरशिप, क्योंकि पब्लिक सेक्टर खासकर जो पब्लिक डिलीवरी जहाँ होती है, पब्लिक डायरेक्ट डीलिंग होती है, वो बड़ा चैलेंजिंग होता है। मैं खुद क्योंकि जैसे आई टोल्ड यू 93 का बैच है मेरा, मैंने उस वक्त PMS नहीं होता था, उस वक्त PCS होता था, तो मैं खुद PCS का हूँ। अपना एक मैंने इम्तिहान पास किया था, प्रोफेशनल सिविल सर्विस जिसे हम बोलते हैं, जिसको आप प्रोफेशनल मैनेजमेंट सर्विस कहते हैं। तो मेरे अपने बैच के लोग मतलब कहाँ से कहाँ चले गए, कोई एडिशनल सेक्रेटरी बन गया, कोई सेक्रेटरी बन गया। उसके बाद फिर मैं फेडरल में चला गया, उसी 2 साल मैंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम किया। तो उसके बाद मैं फेडरल में चला गया, 23rd कॉमन से मेरा CSS हो गया पास, ऑफिस मैनेजमेंट ग्रुप में चला गया। मैं अभी इस्लामाबाद शिफ्ट हो गया, वहाँ कुछ अर्सा काम किया। फिर वहाँ से मैंने एक छोटा सा एक नेशनल बैंक में भी कुछ अर्सा, वहाँ मुझे एक असाइनमेंट मिली, मैंने डायरेक्टर ट्रेनिंग के तौर पे। फिर लास्ट में मेरी जो पोस्टिंग थी, मैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का सबसे वन ऑफ द स्टेट ऑफ द आर्ट ऑर्गेनाइजेशन है पब्लिक सेक्टर के हवाले से, तो वहाँ मैंने माशाल्लाह कोई हेड किया उनकी लर्निंग HR ट्रेनिंग जिसे हम बोलते हैं पूरे पाकिस्तान का। मेरे पास 16 ऑफिस थे, कोई 6,500 एम्प्लॉई था स्टेट बैंक का। तो पूरे उसके साथ भी सारे बैंकिंग के साथ काम किया, वर्ल्ड बैंक के साथ काम किया, IMF के साथ उनके जो ट्रेनिंग प्रोग्राम थे उनके साथ काम किया। आवाज़ आ रही है आपको मेरी? मैं इसको इधर ही रख लेता हूँ। तो उसके साथ उनके साथ काफ़ी चीज़ें की, और मेरा क्योंकि लर्निंग का डेवलपमेंट का एक पैशन रहा ज़िंदगी भर का कि एक ऑर्गेनाइजेशनल जो चेंज है, अफसरी भी की जो होती है अफसरी, ठीक है जी, तो अफसरी भी की, सारा कुछ किया, इसकी जान छोड़ देते। हाँ जी, कैन यू हेयर मी? कैन यू हेयर मी? ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो वहाँ भी अपना क्या कहते हैं कि सरकारी जो होती है सीनियर जो पोजीशन पे रहे, आई वॉज वेरी हाई अचीवर इन थ्रू आउट माई लाइफ। व्हेन आई वॉज 39 आई वॉज ग्रेड 20, तो मैं टक 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 करके बड़ी जल्दी मैंने राइज किया अपने प्रोफेशनल करियर में। लेकिन उसके बाद एक सैचुरेशन पॉइंट आ गया कि नहीं जनाब, अपना नेक्स्ट लेवल जो है ना ये हो गया, अब क्या करें। 3 times आई सबमिटेड माई रेजिग्नेशंस, और फिर अल्टीमेटली फिर बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी में एग्जिट करना भी एक चैलेंज होता है। तो मैंने अपने बिफोर टाइम के मैंने इजाज़त मांगी, सर जी गवर्नर साहब मुझे इजाज़त दें। तो ये सारे सफ़र का एक मकसद है बताने का कि सारा सफ़र लर्निंग एंड डेवलपमेंट के साथ है, और हमारा सबसे वीकेस्ट कनेक्शन लर्निंग एंड डेवलपमेंट। और वो आई वांट, मेरा एक आ जाने का सिंगल पॉइंट एजेंडा है सर। ये बात मैंने एंड में बतानी थी, मैं पहले बता रहा हूँ सर, क्योंकि फारूक अली साहब बैठे हैं, आपके सीनियर सारे मैनेजर्स हैं, कि माई विश माई ड्रीम इज़ कि LDA जो है पाकिस्तान का बल्कि पंजाब का सबसे बेहतरीन अदारा में से है, ठीक है, क्योंकि यहाँ लोगों के बड़े दुख दर्द आप साफ करते हैं। ये प्रॉपर्टी का मसला नहीं है, ये लोगों की इमोशंस हैं, ये ख्वाब होते हैं जो घर होते हैं, जो आप जिनके नक्शे पास करते हैं, जिनको आप इजाज़त देते हैं, जिनको आप जिस दिन आप इमेजिन करें कि जब बंदे का कोई प्रॉपर्टी खरीदता है या नक्शा पास होता है, वो रो रहे होते हैं, बार मिठाइयाँ बांट रहे होते हैं, और बीच में हम उन टोटों से भी मिल रहे होते हैं जो आधा LDA जिन्होंने इनगल्फ किया होता है, जो रियल एस्टेट के जो होते हैं, और आप सबसे ज़्यादा स्ट्रेस वो क्रिएट करते हैं आप लोगों के लिए, ठीक है, और आप लोगों की बैड परसेप्शन जो क्रिएट किया होता है वो आधा ज़्यादा बाहर के लोगों ने किया होता है जी, बगैर पैसे कम नहीं होता। कई बंदे ऐसे होते हैं जो अंदर बैठे काम करवा रहे होते हैं, 1 रुपया भी नहीं, और बाहर उनके नाम पे पैसे चल रहे होते हैं, हम राइट नॉट, उनको पता भी नहीं होता बेचारों को कि यार मेरे नाम देते फारूक अली साहब के नाम देते पैसे निकले ने पड़े हुए ने कि जी वो तो पैसे तो बाहर कम नहीं करते, तो फारूक अली साहब को पता ही नहीं, किसी बात का नहीं पता। तो एक ऐसा एक परसेप्शन क्रिएट हुआ है इस अदारे की। तो मेरा एक मकसद है सर फारूक अली साहब कि दिस ऑर्गेनाइजेशन मस्ट बी द बेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन स्पेशली डिपार्टमेंट्स। बड़े मसले हैं जी, पहाड़ हैं, लेकिन वी आर हियर टू टॉक अबाउट द सॉल्यूशंस।
आई एम नॉट, क्योंकि 1 घंटा इतना नहीं है, टाइम इतना ज़्यादा नहीं, 1 डे होता तो मैं शायद पहले मसाइल ध्यान करते थे, 150 मसाइल हैं जी हमारे। हम डायरेक्ट बात करते हैं 3-4 क्रिटिकल एरियाज़ पे जिस पे हम इसको करेंगे, क्योंकि कोई भी लर्निंग का सेशन है वो एक सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए, ना कि हम कोई और फ्रस्ट्रेशन क्रिएट करें जी ये तो इदारे को जहाँ सब हमारे को बुरा कह के चले गए। क्योंकि मैंने बताया ना, मैंने उस जगह पे काम किया, आपको बता दिया कि मैंने कोई सरकारी ऐसा महकमा नहीं। फिर पढ़ाने की बात है, कोई मेरा 100 कंपनियों में उन्होंने बताया 127 कंपनियों में मैंने ट्रेनिंग सेशंस कराए हैं, लर्निंग कराता हूँ, मेरा शौक है ये। कोई सरकारी कोई इदारा ऐसा नहीं है बड़ा, कोई वापडा ले लें, कोई पुलिस ले लें, पाकिस्तान आर्मी ले लें, एयरफोर्स ले लें, नेवी ले लें, मैं सबका ग्रेजुएट भी हूँ, नेवी का भी हूँ, आर्मी का भी, एयरफोर्स का भी। मैंने नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी NDU बोलते हैं, आर्मी का जो होता है वो क्या कहते हैं ग्रेजुएट, अपना वॉर कॉलेज है नेवी का, मैं सब जगह का ग्रेजुएट खुद हूँ। मैंने वहाँ से अपने कोर्सेज किए हुए हैं और वहाँ पढ़ाया हुआ है पिछले 10-10 साल से। नीपा, सिविल सर्विस अकेडमी ट्रेनिंग, आपका पाकिस्तान स्टाफ कॉलेज जिसको पंजाब नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी बोलते हैं सर। तो मैं सारे सरकारी इदारों के साथ उनके अंदर के जो ना इश्यूज़ को समझता हूँ। मैं रिसर्चर किया और मैंने पब्लिक पॉलिसी में MPhil किया, स्पेशली ये सर अखबार के लिए सब IAS से, जिसको आप इंस्टीट्यूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव साइंस कहते हैं। कोई है IAS का पढ़ा हुआ इधर बच्चा? क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी कैसा है, गरीबों का दायरा है कि हर मैंने देखा सर टॉप पोजीशन पे कोई ना कोई पंजाब यूनिवर्सिटी का बच्चा बैठा होता है, चाहे हेले कॉलेज का हो चाहे कहीं भी हो, टॉप पोजीशन पे माशाल्लाह। लम्स के बच्चे तो मम्मी डैडी होते हैं सर, असल तो वो पंजाब यूनिवर्सिटी है जो हम जैसों के लिए आज भी हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं। तो पब्लिक पॉलिसी के ऊपर सर मेरे बाकायदा तौर पे जो 2 साल की जो रिसर्च किया, जो थीसिस के ऊपर रिसर्च किया, वो पब्लिक सेक्टर रिफॉर्म्स थी और डॉक्टर इशरत के साथ बड़ा काम किया। अब माशाल्लाह देखें ना, कल उन्होंने बिल पास कर दिया, कैबिनेट में पेश किया कि जिसमें रिफॉर्म्स के ऊपर मैं पिछले 2 साल से डॉक्टर साहब के साथ काम कर रहा हूँ, उनके डॉक्टर इशरत हुसैन साहब जो उस वक्त एक्चुअली फेडरल मिनिस्टर हैं रिफॉर्म्स के, ठीक है जी। और 2-2.5 साल से उनके साथ मैं उनको अपने कभी इस्लामाबाद जाता हूँ तो उनके यहाँ लाहौर आते हैं तो मेरे पास ही आते हैं। तो एक मेरा कि पैशन था कि यार रिफॉर्म्स हों, रिफॉर्म्स के बगैर, पॉलिसी चेंज किए बगैर बातें करने से कुछ नहीं होगा जी। ये पुराने ज़माने के SOP जो बने हुए हैं, हमारे उस्ताद एग्जाम्पल दिया करते थे चेंज मैनेजमेंट के ऊपर फारगिल साहब, कि वो क्या हुआ था, कैनन्स होती थी ना, जब उसका SOP साथ मैनुअल आता था तो वो अंग्रेज़ों के ज़माने में जब पार्टीशन से पहले तो फायर करते थे ना जी, तो उसमें लिखा हुआ था उस SOP के अंदर 2 स्टेप्स बिहाइंड, ठीक है, पुट द फिंगर्स इन 2 ईयर्स एंड फायर, क्योंकि वो ईयर ड्रम्स को आवाज़ करती थी हिट, तो ईयर ड्रम्स डैमेज होते थे, तो उस वजह से कैनन से थोड़ा सा 2 फुट के फासले पे खड़ा होना पड़ता था और ईयर ड्रम्स को बचाने के लिए आपको बीच में उंगली लगानी पड़ती थी। उसके बाद वक्त बदल गया सर, कैनन्स की टेक्नोलॉजी चेंज हो गई, नई वेपन्स आ गए, नई आर्टिलरी आ गई, अनफॉर्चुनेटली SOPs नहीं बदले। और जब कैनन्स आएंगे उन्होंने कहा फायर, तो 2 स्टेप पीछे और उन्होंने कहा सर अब ये साउंड प्रूफ हैं ये कैनन्स, आप खड़े होकर भी फायर करेंगे तो कम से कम कैनन्स बनाने में सर जी को मेरे ख्याल साल लगा होगा और रूल्स बदलने में 5 साल लगे जी कैनन्स के चलाने के। सर ये प्रॉब्लम है हमारे अदारों के साथ, दुनिया बहुत आगे चली गई सर, और SOPs अभी तक पिछले ज़माने के हैं सर, वही 2 स्टेप नहीं सर, किताब में लिखा हुआ है सर, रूल में लिखा है सर हम 2 स्टेप पीछे जाएंगे सर। वो कहेगा यार दुनिया आगे चली गई, सोशल मीडिया के ऊपर हर चीज़ चल रही है, पेज के ऊपर हर इदारे की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, चेकलिस्ट बनी हुई, SOPs बने हुए, क्लिक करें, ऑनलाइन करें, आपका नक्शा पास हो जाएगा, इतने दिन का टाइम है जी। अब तो 1 विंडो का सीज़न भी पुरानी होती जा रही है सर, ये तो ऐसे कोई 5-10 साल पहले जब LD ने 1 विंडो शुरू किया। और अभी भी सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारे इदारों में क्या होता है, कमिटमेंट्स का, कि हमने जो लिखी होती है डाइट अभी भी काम नहीं होता। तो प्रॉब्लम वो जो बेचारे जो फ्रंट में बैठा है उसका नहीं, उसके पीछे जो सिस्टम का है, देयर इज समथिंग प्रॉब्लम। तो सर इन चीज़ों को थोड़ा सा हम ना, मैं चाहूँगा कि हम चलेंगे कि एक्सीलेंस जहाँ जहाँ भी चैलेंजेस हैं, इश्यूज़ हैं, चाहे वो LD है कोई भी हो, लेकिन अगर मुझे इजाज़त दें तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इजाज़त दें, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो निकलेगी एंड पे, वो आपका सेल्फ निकलेगा, आपकी ज़ात निकलेगी। एक छोटी सी स्टोरी शेयर करके फिर मैं आपके पास आता हूँ क्वेश्चन आंसर के लिए, फिर प्रेजेंटेशन होगी। वो एक सर बच्चा था, तो घर में काम आया स्कूल से छुट्टी करके, तो बाप वो तंग कर रहा था, बाप अपना काम कर रहा था, तो कहता यार इसको ना मैं कैसे बिज़ी करूँ, ये तो बहुत ज़्यादा तंग कर रहा है बच्चा। वो बेटे को कहता बेटा बात सुनो, उसके पास अखबार पड़ा हुआ था बच्चे के उसकी टेबल पे ना, तो उसने वो अखबार का कहा बच्चा देखो ये दुनिया का एक नक्शा बना हुआ है। कह जी अच्छा जी, ये नक्शा जो है ना, ये देखो ये 200 मुल्क हैं जी इस मैप के ऊपर। तो उसको उसने बाप ने उसके पीसीस कर दिए छोटे छोटे, और बेटे को कहा जा बेटा वो कॉर्नर में जाके बैठ जा और इसका जो ना मैप ठीक करके ला, सीधा करके ना जोड़ के ये टेप पकड़ और इसको इकट्ठे कर, उसके ऊपर टेप लगा और ये इसको नक्शा ठीक करके ला। बाप ने समझा कि 4 घंटे लग जाएंगे इसके, काफ़ी मुश्किल काम है, इतने मुल्क इकट्ठे करने, 200 इनके पीसीस करने, जोड़ने, फिर टेप लगानी, कोई मुल्क इधर इधर ना हो जाए। 5 मिनट के बाद बच्चा जी नक्शा ठीक करके ले आया।
तो फादर वॉज रियली गॉट क्या सरप्राइज्ड कि यार व्हाट हैपेंड, इतनी जल्दी तुमने कैसे कर लिया, यू आर ए जीनियस। कहता अब्बा जी ये कोई रॉकेट साइंस नहीं थी, बड़ा सिंपल सा आपने समझा कि बड़ा मुश्किल सवाल है, ये तो बड़ा आसान सवाल था कि किया कैसे। और कहता जी वो नक्शे के पीछे कायद-ए-आज़म की फ़ोटो बनी हुई थी, मैंने टोपी ठीक की, नाक ठीक किया, टेप लगाई, उधर से नक्शा ठीक हो गया। तो बाप ने गॉट ए लाइफ लर्निंग लेसन। उसने कहा यार देखो कि यार दुनिया का नक्शा ठीक करना हो, सर जी मुल्क का नक्शा ठीक करना हो, लाहौर का नक्शा ठीक करना हो, ठीक है, जो कि 2500 प्लाजा उन्हें रखे हुए लाहौर का नक्शा ठीक करने के लिए, सर ऐसे ही ना, टोटल LDA के जो शिप के ऊपर 2500 तो माशाल्लाह HR होगा ना जी। तो उसके बाद यहाँ फिर घर का नक्शा ठीक करना हो, मोहल्ले का नक्शा ठीक करना हो, मोहल्ले की मस्जिद का नक्शा ठीक करना हो, तो उस नक्शे के पीछे ना सर वो तस्वीर एक ही है, वो इजाज़ निसार की है, वो फारूक अली साहब की है, वो महमूद साहब की है, वो अली बिन सुहेल की है, ठीक है जी। कायद-ए-आज़म की, देखा ना, सही बोला ना, आई वॉज एक्सपेक्टिंग दिस, वो कायद-ए-आज़म की है, ठीक है, वो सबसे जल्दी काम होता है ना जी। और मलिक रियाज मॉडल है सर, एक ही मॉडल है जी सक्सेस का। मलिक रियाज साहब से पूछा ना सर आपका सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है, कहता जी वो फाइल के नीचे टायर लगाने पड़ते हैं, वो फाइल की टायर जो है ना सर जी वो आज तक वो चलता है जी। तो कमिंग टू द पॉइंट सर, नाउ ओवर टू यू सर, बिफोर आई जब कि एक्सीलेंस किया, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू गिव यू द एकेडमिक प्रेजेंटेशन कि जी बड़ा ये गूगल से तो आप चीज़ें हर चीज़ मिल जाती है, अब तो सबसे बड़ा उस्ताद गूगल है सर जी। सरदार जी से पूछा ना जस्ट ऑन अ लाइटर नोट कि सर जी आपकी बीवी का नाम क्या है, तो उसने कहा जी गूगल। कहता जी गूगल कैसे हो सकता है, कहते एक सवाल पूछो 10 जवाब दे दी, हर चीज़ तो मिल जाती है, 10 मिल जाती है, सो है कन्फ्यूजन ही होता है, ओवर सेचुरेशन होगी ना इन्फॉर्मेशन, कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन। आप लीडरशिप लिखेंगे आपको 5 करोड़ साइटें मिल जाएंगी लीडरशिप के ऊपर, क्या लीडरशिप होती है, कस्टमर सर्विस कैसे इंप्रूव करनी है आपको 50,000 स्लाइडें मिल जाएंगी, यू विल बी गेटिंग कन्फ्यूज्ड। ओवर जो होती है ना वॉमिटिंग हो रही है इन्फॉर्मेशन की, इतने चैनल्स आ गए हैं जी इन्फॉर्मेशन के। अब असल चीज़ है कि व्हाट इज़ द राइट information which can correct, which can transform, which can change the behavior of the people, of the organization as well. Okay जी, before I jump to the presentation, my just 3-4 questions मैंने ये मार्कर रखा हुआ है, मुझसे कुछ 3-4 सवाल बताएं, इस टॉपिक के वाले से बताएं इजाज़ साहब, ये एक इशू है और यह एक चैलेंज है, हाउ टू ओवरकम, हाउ मेरा पार्ट पास हाउ मैं शेयर करूँगा, व्हाट आप शेयर कीजिए। जी अली लेट्स स्टार्ट। मजाहत चलें जी, कोई एक सवाल ताकि आप इनिशिएट करें। मैंने सवाल पूछने के लिए मैंने एक आपके लिए एक छोटा सा गिफ्ट रखा है यार, हम सीरियस बातों के साथ थोड़ी सी, ये एक कोई सवाल पूछेगा ना ये तो आपका ही नहीं मिलेगी क्योंकि आपको मैंने पूछा, आप कोई सवाल पूछेंगे उसके लिए है जी। हाँ जी, जस्ट क्वेश्चन अबाउट एक्सीलेंस, क्वेश्चन अबाउट डिलीवरी ऑफ सर्विसेज, कुछ चैलेंज बताएं, क्वेश्चन बताएं, अपने ज़ात के वाले से बताएं, सिस्टम के वाले से बताएं, एनी क्वेश्चन प्लीज। सर जैसे आपने कहा कि बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन जो 100 से ज़्यादा ट्रेनिंग्स करवाई, तो क्या आपने कभी उसके बाद फीडबैक भी लिया कि ट्रेनिंग से क्या इम्प्रूवमेंट? बहुत, हर दफ़ा, बल्कि तो सिस्टम होता है जिसको कहते हैं इम्पैक्ट असेसमेंट, जिसको हम ROI बोलते हैं, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जिसे कहते हैं, इन्वेस्टमेंट है ना जी, मैं उसको कहता हूँ तो रोटी, जो आपने सवाल पूछा ना उसको मैं रोटी कहता हूँ, आफ्टर ट्रेनिंग को कहता हूँ रोटी, क्योंकि उसके बगैर फ़ायदा नहीं है। रोटी का मतलब होता है, ये HR एडमिन के लोग बैठे हैं आप में से कोई, तो उनको मैं कहता होता हूँ कि रिटर्न ऑन ट्रेनिंग इन्वेस्टमेंट। क्या बोला जी? अगर कोई फाइनेंस का बंदा है, फाइनेंस किसने पढ़ा है, ACCA किसी ने किया हो या MBA फाइनेंस किया हो, तो वो आपको बताएगा कि जो हर चीज़ का जो एक्टिविटी होती है, इन्वेस्टमेंट होती है, उसकी रिटर्न्स को कैलकुलेट किया जाता है कि आपने ये 1 करोड़ रुपये लगाया या आपने ये 7 इतने बिलियंस ऑफ रुपीज़ लगाए, आपका ये जो है LDA कॉम्प्लेक्स है जहाँ बैठे हुए हैं, इसका रिटर्न क्या है जी, कितने बिलियन का एसेट है, जस्टिफाई करता है कि नहीं करता है भाई? अवैध ऐसे है ना, अदरवाइज तो ये फिर डेड वुड हुआ ना, डेड एलिफेंट हुआ। तो कोई भी दायरे की जो एफिशिएंसी का तल्लक उसके रोटी के साथ है या उसके ROI के साथ है, नहीं समझे बस? सर मैं बता रहा हूँ, जैसे बिगनिंग ऐसा भी इमरान साहब के साथ हुआ है कि बाकायदा तौर पे फारूक अली साहब के साथ हमारी जो मीटिंग हुई थी तो इसमें महमूद भी बैठे थे, हमने ये कहा था कि सर इट इज़ अ बिगनिंग, आपने लाजमी बैठना है, ऐसे इमरान साहब आपके DG साहब भी बैठेंगे अगली मीटिंग्स में, समझे नहीं बात है, और आपके नीचे तक ये सिक्योरिटी गार्ड तक आएगा इस फील्ड में, ये मेरी कोशिश है, पूरा एक कैलेंडर बनेगा। और मैंने कहा था जब आपकी प्रमोशन होगी, आपका नाम क्या है? बिलाल,
जब आपके स्टाफ की प्रमोशन होगी नीचे से ऊपर या ऊपर से फिर 16वें से 17वें, 17वें से 18वें में जब कोई ऑफिसर जाएगा, एक तो मैकेनिज्म बना हुआ है जिसको सीनियरिटी कहते हैं ना जी सरकारी इदारों में, और उसके साथ सीनियरिटी के साथ परफॉर्मेंस प्लस ट्रेनिंग डालिएगा अपने उसके प्रमोशन क्राइटेरिया में, पॉलिसी के बना के साइन कराएं, फिर लोगों को सर्कुलेट कर दें कि जनाब अगले 6 महीने में प्रमोशन आ रही है तो उसमें आपने नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स कितनी की हैं। जब तक ये नहीं रखेंगे नोबडी विल टेक इट सीरियसली। ये मेरा जिंदगी का तजर्बा सर, देखो ना मैंने कहा ना 25 साल हो गए मुझे इस फील्ड में, 25 ईयर्स, तो क्वार्टर सेंचुरी बनती है सर, क्वार्टर सेंचुरी। तो मैं तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा तो एक कि यार जिस अदारे को ट्रांसफॉर्म करना है ना जी, तो 2 तरीके हैं, या कॉस्मेटिक ऊपर वाइट वॉश कर दें, चूना लगा दें बाहर बाहर से, तो ये ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा जो कि बारिश में ख़त्म हो जाएगा। दूसरा क्या, उसकी बुनियादें ठीक करें। अगर आपने पत्तों को ग्रीन करना 2 तरीके हैं, या पानी दें या उसकी रूट्स को पानी दें। किसको कहेंगे पानी जी? यस, जब आप रूट्स को ठीक करेंगे तो पत्तों को पानी लगाने की जरूरत ही नहीं रहेगी, पत्ते ऑटोमेटिकली रूट से पानी ले लेंगे। दैट इज अ स्ट्रेटेजी ना सर। तो यू गॉट द आंसर सर। ये आपका सवाल का है बिलाल, ये आपके लिए कैच करें प्लीज प्लीज। हाँ जी, और नेक्स्ट क्वेश्चन। सर उसमें बेसिकली उन्होंने ये ट्रैक रखा परफॉर्मेंस के ऊपर कि अगर आपने फ़र्ज़ किया अगर आपने परफॉर्म नहीं किया तो वो वाला चक्कर ख़त्म कि आप जाएंगे जी, फिर वो 10 साल तक केस चलता रहेगा, तो आपका ये हो जाएगा। तो उसका पूरा सिस्टम है कि जी जैसे कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर आपको फायर किया जा सकता है नॉन परफॉर्मेंस की बेस पे, तो अब सरकारी इदारे में भी होगा। ये नहीं होगा कि सर जी वो बंदा सस्पेंड हो गया, सैलरी भी ले रहा है और कोर्ट में चला गया, तो कोर्ट में 10 साल बाद केस हियरिंग हो रही है और 10 साल मजे कर रहा है वो। ये चीज़ें अब उन्होंने कहा कि बाय लॉ कैबिनेट से जब अप्रूवल आ जाएगी तो फिर ये लॉ जब बन जाएगा, ठीक है, ये ऑर्डिनेंस के तरीके आएगा तो फिर ये चीज़ें आगे चलेंगी। और बुनियादी तौर पे जो डॉक्टर साहब की जो फिलॉसफी है वो परफॉर्मेंस के ऊपर है सारी। जुडिशरी की भी परफॉर्मेंस याद रखी है एक तरफ। वो अब क्या कहते हैं कि वो उसमें तो जुडिशरी के साथ हमारे फिर फौजी भाई भी आ जाएंगे, फिर सारे आ जाएंगे, तो वो फिर उनको क्योंकि ये सबसे बड़ा देखिए KPIs की दुनिया है सारी। सर मैं पिछले 25 साल से पंजाब यूनिवर्सिटी में IBA में लाम्स में मैं कोई 20 साल से तो मैं फैकल्टी में हूँ यार, HR पढ़ाता हूँ MBA को, हज़ारों MBAs पढ़ाए HR में मैंने, इस पर जो उनका सब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट और HR ह्यूमन रिसोर्स का। मैं 2000 से IBA में पढ़ा रहा हूँ HR एज अ फैकल्टी। सुबह में नौकरी करता था, वही जो मेरा मुलाजम, तो शाम को मुझे कहते थे जहाँ साहब आप प्लीज़। उस वक्त HR का नाम ही नहीं था, HR का नाम तो 10 साल पहले आया है। पहले तो क्या था जी, आज से 20 साल पहले तो एडमिन होता था जी, पर्सनल डिपार्टमेंट। अब HR का आपको जो फटे चेंज हुए हैं तो अब हुए हैं 5-7 साल पहले, ऐसे ही ना जी। उससे पहले क्या लिखा होता था, ठीक है। अभी भी सरकारी दफ्तरों में अक्सर पता है कि किसी आप बड़े बाबुओं के सेक्रेटेरिएट में चले जाएं, उसमें क्या लिखा होता है बाहर के दफ्तरों में, साइलेंस प्लीज। हाँ फारगिल साहब क्या लिखा होता है, साइलेंस प्लीज। वो पॉलिसी के तहत लिखा साइलेंस को के, और आगे कोई शरारती किस्म का, आपका नाम क्या है, राना साहब, मार्कर पकड़ते हैं और आगे लिख देते हैं, उसमें उर्दू में भी लिखा होता है खामोश रहें, क्योंकि बड़े बड़े बाबू बैठे हुए ना, आगे लिख देते हैं वरना ये जाग जाएंगे। क्या बोला, खामोश रहें वरना ये सोई भी कौम है। फारगिल साहब कहते हैं कि सोते को जगाना आसान है। ये सारे मेरे साथ मिलकर बोले ताकि आप मेरे साथ मिरर करेंगे ना आगे जो कंटेंट आ रहा है। सोते को जगाना, सारे मेरे साथ, सोते को जगाना आसान है, जागते को जगाना मुश्किल है। सोते को जगाना, चेहरे पे मट्टी लगी है और आईने साफ कर रहे हैं। क्या बोला जी, चेहरे पे धूल जमी है और हम क्या कर रहे हैं जी, आईने साफ कर रहे हैं, अपने चेहरे नहीं साफ कर रहे। वही बात, सेल्फ की बात की तरफ करते ही नहीं है कोई, दूसरों की करते हैं। सर बुरा ना मानिए, 2 पाकिस्तान है हमारे। पहले तो ना उस दिन चौधरी सरवर साहब का मैंने एक सेशन किया, इंटरव्यू किया। चौधरी सरवर साहब की मैंने एक टॉक रखी हुई थी अपने पास। हमारे पास सारे आते हैं, ये जो आर्मी चीफ सारे, सबको मैं बुला चुका हूँ, सब माशाल्लाह टॉक्स। मेरे एक फोरम बनाया हुआ CO क्लब का, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो पाकिस्तान के सारे, खान साहब को भी 3 दफ़ा बुला चुके हैं। तो वो मैं उसका मॉडरेट करता हूँ सेशन। तो चौधरी साहब का ये अभी यूट्यूब पे लिखेंगे, जहान सर विद चौधरी सरवर, जो हमारे गवर्नर साहब हैं। तो वो मैंने कहा था, चौधरी साहब पुराने पाकिस्तान और नए पाकिस्तान में क्या फ़र्क है, पुराना पाकिस्तान और, कहते जी आप ही बता दो जहाज। मैं आपने इतना नया पाकिस्तान बनाना था, किधर गया वो नया पाकिस्तान, 2.5 साल हो गए, बल्कि 3 साल हो गए हैं, 5 महीने तो पहले इंटरिम गवर्नमेंट भी डाल लेना, वो भी आप ही की थी, ठीक है जी। तो 3 साल तो हो ही गए सर गवर्नमेंट को नया पाकिस्तान बने।
कहता आप ही बता दो जहाज में। मैंने कहा जी सर बुरा ना मानिए, पहले पुराने पाकिस्तान में फाकिल साहब हम प्याज खरीदते थे, लेके आते थे, काटते थे तो आंखों में आंसू आते थे, अब प्याज खरीदते वक्त आंखों में आंसू आते। ये नया पाकिस्तान है जिसमें प्याज, सर बिलाल साहब बाकी रोना आता है, सैलरी में पूरा नहीं होता। और सरकारी मुलाजम की सैलरी सिर्फ जो होती है ना वो 4 हफ्तों में होती है, पता ना आपको। सरकारी मुलाजम की जो सैलरी मिलती है वो 4 हफ्तों में जिनकी कुछ ही पट्टी होती है, पहले हफ्ते में सैलरी मिलती है, क्रेडिट होती है, तो क्या होती है हंसी खुशी। सर उतारे लो हफ्ते में सर, पहले जो उधार चला जाता ना बाहर, और हंसी खुशी के 1 हफ्ते के बाद खत्म हो जाती है, ये कहना चाह रहा हूँ। और दूसरा हफ्ता शुरू हो जाता है क्योंकि पिछला दे दिया, 1 हफ्ता गुजार लिया हंसी खुशी, उसके बाद क्या होता है दूसरा हफ्ता शुरू होता है रस्सा खुशी, तीसरा होता है फाका खुशी, चौथा होता है खुद खुशी, फिर आ जाती है, फिर उधार शुरू हो जाता है। वो एक विशियस साइकिल जिसको हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते थे ना सर, विशियस साइकिल ऑफ पॉवर्टी। तो हमने बदकिस्मती से पिछले 3 साल में, क्योंकि मैं स्टेट बैंक होने की वजह से थोड़ा सा, अभी मैं आज टॉपिक में नहीं उसमें मैं उलझूंगा, आज मैं एक्सीलेंस पे रहूँगा कि इकॉनमी का मैं थोड़ा सा शागिर्द तालिब इल्म हूँ। आई नो कि थोड़े से जो नट स्पोर्ट्स होते हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होती है, इकोनॉमी कैसे डेवलप होती है। और मैंने जो 18 ये जो रिफॉर्म्स के ऊपर मैंने 8 कंट्रीज़ जो थे ना उनकी इकॉनमी और उनकी रिफॉर्म्स के ऊपर सारा जो रिसर्च किया था, जिसमें बांग्लादेश भी था। कैन यू इमेजिन कि 44 बिलियन पे चला गया उसकी एक्सपोर्ट, जिसका टगा, जिसको हम टगे टोकरी की समझे, ये टगे के लोग नहीं है यार, हमसे डबल है उनकी इकॉनमी सर, डबल, टगा भी डबल हो गया सर। हम 22 बिलियन पे स्ट्रगल कर रहे हैं अभी तक, पड़ा छलांगे मारने के बावजूद भी। तो इकॉनमी बुनियादी चीज़ है ना आज के दौर की, बाकी सारी बातें इनकी बकवास है सारी। अगर आपको मिडिल क्लास चाहिए, अगर आप मिडिल क्लास निकाल दें किसी भी मुल्क के अंदर से, यू पीपल बिलोंग टू द मिडिल क्लास यार, हम भी उसी में तबके से हैं। कोई 70,000 ले रहा है तो 50,000 ले रहा है, कोई लाख रुपये सैलरी दे रहा है, कोई 2 लाख ले रहा है, तो वो मिडिल क्लास भी स्लैब में ही आता है सर। तो मिडिल क्लास की जो जिसे कहते हैं ना कैपेसिटी टू बाय जो है वो खत्म होगी ना सर। बच्चे स्कूल में पढ़ा के दिखाएं, आपका तो बीकन हो, मैं कल लड़ के आया हूँ, खुदा की कसम मैं कल लड़ा हूँ, ऑफ द रिकॉर्ड ये बात मैं कर रहा हूँ। कल मैं स्कूल, क्या बात है, सिटी स्कूल, मेरे बच्चे गलती से मैंने बढ़ा दिए, O लेवल के उनके एडमिशन जा रहे हैं, एच लेवल के आजकल। वो कहते जी भाईजान ये स्कूल के फीस, ये फीस, वो अगले 3 महीने की पहले फीस, ये फीस डाल डोल के सर जी उन्होंने मुझे 3 लाख का बिल पकड़ा दिया 2 बच्चों का। कैन यू इमेजिन यार कि कोई बंदा 3 लाख रुपये, यार खुदा का गौर करो, कोई बंदा पढ़ा सकता बच्चे अपने? पॉसिबल ही नहीं है यार कि कोई यहाँ तो कोई यार बंदा फिल्थी रिच हो, तो यहाँ फिर बंदे की कोई ऐसा कोई कमाई हो, या कोई भाई बैठा है कोई अमेरिका में डॉलर भेज रहा है उसको। तो दिस इज द रियली हिट बाय, सबसे बड़ी बदकिस्मती हुई है पिछले कुछ, ये नहीं कि 3 साल, उससे पहले सर को 5 साल से जो एक रिसेशन चला है इकोनॉमी का, उसके अंदर मिडिल क्लास को इवेपोरेट कर दिया। दिस सबसे बड़ा डेडली पॉइंट है। ओके, कमिंग टू द पॉइंट सर। सर आपका सवाल हो गया, एनी क्वेश्चन? मेरी प्रेजेंटेशन पे आना है, मेरे आधा घंटा प्योर, फिर मैंने इस पर फोकस करना चाहिए। आगे जी जी बोलिए। हाय हाय हाय, बड़ा क्रिटिकल। आपका नाम? तैयबा, ये आपके लिए कैच कीजिए। है जी तैयबा ने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। इसका जवाब है छोटा सा, क्योंकि टाइम थोड़ा, मैं इसलिए थोड़े से टाइम में कुछ चीज़ें रैपअप करनी है। अब छोड़ दीजिए, जो ना हमारा सबसे बड़ा प्रॉब्लम है हमारा फ्लैटरी कल्चर। क्या बोला जी? फ्लैटरी, खुशामदी कल्चर। बॉस को खुश रखें बस, बॉस ठीक है जी, चाहे फौज हो, मैं आर्मी में जाता हूँ उसमें भी ये यस सर, जी सर, यस सर, बॉस के सामने तो बोल नहीं सकते, क्वेश्चन करना तो गुनाह है सरकारी नौकरी में। तो वो कहते हैं जी कि अब छोड़ दे धंधे तकरीबी, ये मैंने पोइम लिखी थी बड़े साल पहले, अब छोड़ दे धंधे तकरीबी, तू भी काम कोई तामीरी कर, मेरे यार तू भी इस दौर में चमचागिरी कर। जब चमचा तू बन जाएगा हर काम तेरा निकल जाएगा, ये करनी का है फल बाबा, तू करनी का फल पाएगा, जब चिकनी चुपड़ी बातों से तू साहब का दिल बहलाएगा, क्या उसको शर्म ना आएगी, क्या काम तेरे ना वो कराएगा, क्या प्रमोशन तेरी ना हो। सर ये एक अनफॉर्चुनेट ऐसी चीज़ है कि हम परफॉर्मेंस को मैयर करना, मैं आपको नफ्सियात का एक टिप दूंगा कि जब ऊपर वाला बंदा बैठा होता है जिसने ACR लिखनी होती है, हैवक क्रिएट कर देता है अगर उसकी ट्रेनिंग ना की जाए हालो फैक्ट के ऊपर। अप्रेजल्स की जो सिस्टम होता है, ACR का मतलब क्या होता है पता है आपको? नहीं सर, ये तो पुराने जमाने का है सर, नया नहीं। ACR का सर अवैध क्या होता है जी? ACR स्टैंड्स फॉर, सुन लीजिए, एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिवेंज। क्या बोला मैंने जनाब? आपका जिंदगी का, आपका एक बंदे ने गलत रिपोर्ट लिख दी,
गए आप, मारे गए, आपका करियर तबाह हो गया यार। आपके 3 बंदे आपके पिछले जूनियर या आपके साथ ऊपर चले जाएं, सर बड़ी जलन होती है। हसद इस मुल्क का सबसे बड़ा आलमी है। मैं वासफ अली वासफ का शागिर्द हूँ, वो कहते होते थे कि हम कहते थे सर मुल्क का पाकिस्तान का मसला क्या है, बड़ा ये सवाल है, FAQ है मेरा, वो बड़े इसके जी इमरान खान का मसला है, या वाजरी है, या फौज है, या अमरीका है, या अल्लाह है, ये सारे साइड पे रख दें। असल मुल्क का जो मसला 2 ही है, या तकब्बर है या हसद है। पूरी दुनिया में चले जाए यार, किसने 10 मुल्क देखे हैं, आपको कोई तकब्बर नाम की चीज़ नजर नहीं आएगी किसी जगह। वो झूठ इसी का नतीजा है। तकब्बर को मेंटेन करने के लिए झूठ बोला जाता है, ईगो है बेसिकली। झूठ क्यों बोलते हैं? बिकॉज होता है कि मैं जनाब मैं बहुत बड़ी चीज़ हूँ, मैं मर जाता। और हसद, इतना ज़्यादा हसद है कि किसी को दिल से दुआ नहीं देते कहीं सचमुच में लग ही ना जाए। इतना सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हाई है। मैंने 25 साल, क्योंकि मैंने बताया ना आई एम बेसिकली, मेरा पैशन है अपार्ट फ्रॉम ये नौकरी शौकरी के अलावा, माई पैशन इज साइकोलॉजी। जॉब में तो मैंने इकोनॉमी को स्टडी किया, और मेरी बाय डिफॉल्ट जो अल्लाह पाक ने मुझे साइकोलॉजी में, ये नहीं किताबें तो पढ़ी, मास्टर्स किया, आई डिड माय 5 मास्टर्स, इसमें 1 ऑफ साइकोलॉजी। तो मैंने साइकोलॉजी मैंने ज़िंदगी में पढ़ा, और सेल्फ साइकोलॉजी का एक ही सब्जेक्ट है जिसके ऊपर मैंने 25 साल रिसर्च किया है, 25 ईयर्स, एक 1 लाइन के ऊपर, वो था खुद ही कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, सेल्फ डेवलपमेंट। ठीक है, आज का वो टॉपिक नहीं है, मैं उसको साइड पर रख रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे जो चेन ऑफ कमांड होती है आपने एक ऑर्गेनाइजेशन की एंटिटी के लिए वो ज़रूरी होती है, लेकिन अगर वो प्रोफेशनल एक बंदे कम बैठे हों तो ख़त्म कर देते हैं चेन ऑफ कमांड को, समझते नहीं। फिर चेन ऑफ कमांड ना हो तो अनार्की डेवलप हो जाती है। नहीं सर, वो भी हैं सर। देखिए पता क्या है, वो एक्सक्लूड नहीं हो सकते अगर उनका जो अप्रेजल सिस्टम है, ये तो आगाज ही कंप्रोमाइज से हुआ। नहीं सर, ये आपको अंदाजा नहीं है। ऑफ द रिकॉर्ड वही बात आ गई कि कोई रिकॉर्डिंग तो नहीं कर रहा नहीं, ठीक सर जी, नहीं वो वाली रिकॉर्डिंग मैंने ये वाली रिकॉर्डिंग नहीं मैं मान रहा, ये तो अपनी है। वो असल आपको अंदाजा नहीं है। अगेन वही बात, यकीन जानिए कि जब आप दूसरी तस्वीर का रुख देखते हैं ना, तो फिर आपको कोई पिक्चर कुछ नजर आती है ना। 6 और 9 का रोल है ना सर जी, 6 और 9 का रोल है ना सर। ये देखें, ये आपको क्या नजर आएगा? 9 नजर आएगा, इधर से 6 आएगा। और मैं जब एजेंसियों की ट्रेनिंग कराने जाता हूँ, ISI, इंटेलिजेंस ब्यूरो, IB, ये वो नैब, मैं जब जाता हूँ तो यकीन जानिए उनके साथ जब बैठता हूँ, उनके साथ रोटी खाता हूँ, चाय पीता हूँ, उनका पॉइंट ऑफ व्यू सोचता हूँ, आपको लगता है यार तुम ठीक कह रहे हो। आप कभी उनके पास जाएं, आप ये जितने मैं बिजनेस वालों की बात करता हूँ, कहते हैं मारे गए, लुटे गए, सानू FBR खा गया, सानू ये खा गया। और जब मैं FBR की ट्रेनिंग कराने जाता हूँ, कहते हैं जनाब ऐसे बड़े चोरी कोई नहीं। प्रूफ देते हैं, जहाँ सा बुरा ना मानिए। देखें ये मेरी, आपको नाम लें, मंशा का नाम लें, सर कितना बड़ा सेक्स चोर है। जब आप तस्वीर के दोनों तुक देखते हैं ना, एनालिसिस आपने करना होता है, कंक्लूजन आपने निकालना है, लेकिन स्टोरी के दोनों साइड देखें, फिर यू मे कंक्लूड। डोंट नॉट जंप टू द कंक्लूजन कि एक 1 साइडेड स्टोरी। अब कहेंगे बाहर का जो परसेप्शन LD के बारे में कुछ और है, LD के बारे में कहेंगे मैंने आपको पहले बता दिया है, आपका परसेप्शन शायद आपके लोग इतने बुरे ना हो जितने लोगों के पास बनाया हुआ है। आप किसी प्रॉपर्टी एजेंट के पास बैठ जाओ, कहेगा जी भाई कम पैसे तो बगैर काम ही नहीं होता, दीवाना पैसे मांगती है। कोर्ट्स में चले जाएं, कोर्ट्स की दीवारें पैसे मांगती हैं। एक फर्द लेनी हो या एक आपने कोई चीज़ निकालनी हो, आपने कोर्ट की डिसीजन की कॉपी लेनी हो, पैसों के बाद निकलती कॉपी जी, जाके देखें जरा, कहेगा जी अब ऐसा रहा 500 रुपये दो, मैं तुमने कॉपी दे देना, टेस्टेड कॉपी। वैसे तरीका क्या है कि एप्लीकेशन दे जाओ, तो 15 दिन बाद आ जाना। सर दिस इज द, देखिए ऊपर लेवल में बात नहीं कर रहा, नीचे की बात कर रहा हूँ, सिस्टम की बात कर रहा हूँ। टेक्नोलॉजी ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी, क्या बोला जी? सिस्टम ब्रिंग्स ट्रांसपेरेंसी। तो आपका पॉइंट इज टेकन। वो जो होता है ना, अगर फौज की बात करें, यकीन जाने का बुरा नहीं मानिएगा सर, मेजर रैंक या कर्नल रैंक, सर मैं उनकी बड़ी ट्रेनिंग्स करवाता हूँ, उनके जाता हूँ, उनके स्टाफ कॉलेज कोयटा, ये वो काकूल भी। सर यकीन जानिए नीचे वाले लेवल पर जा रहे कुछ और लेवल है, सूरत हाल, ऊपर जाए कुछ और है। ऐसी अली वो बेचारे, तो आपने देखा, अगर किसी का फौजी भाई का बाहर है तो बेचारा आपसे पैसे लेके जाता होगा घर से, कसम से सर। मेरे 2 भाई आर्मी में हैं, ऐसे ही हाल है। तो इसलिए ना ये वही कह रहा हूँ कि वो चले सर जी, लास्ट क्वेश्चन, फिर मैं एक अगले फिर आधा घंटा में आपको एक्सीलेंस की। हाँ जी, और कोई सवाल है जी? प्लीज 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 प्लीज। जो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, जी जी बोलिए। उसमें उस ऑर्गेनाइजेशन में आप एंड लेवल पे एक्सीलेंस कैसे अचीव कर सकते हैं? सर बड़ा मुश्किल होता है जब तक एक्सीलेंस के लिए ऑन स्पॉट जब तक डिसीजन मेकिंग नहीं देंगे ना। फर्स्ट सिक्योरिटी गार्ड है, उसको भी एक सर्टन लेवल पे आपको
एक ज़रा सुन लीजिएगा जी, ज़रा बड़ा प्यारा आपका सवाल है, मैं कोशिश इसलिए मैं आपको जवाब ऑन स्पॉट दे रहा हूँ। सर व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एम्पावरमेंट? इन ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्पावरमेंट होती है ना जी। सर होता क्या है कि जो चेन ऑफ कमांड की बात की, ठीक है जी, होता ये है सर कि सर्टन लेवल के ऊपर आप क्या करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज डेलीगेट करते हैं। क्या करते हैं जी? अगर उस रिस्पॉन्सिबिलिटीज के साथ अगर खाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे दी जाएं और उसके साथ सर्टन लेवल की अथॉरिटी ना दी जाए तो ये डिसएम्पावरमेंट है। क्या बोला जी? डिसएंगेजमेंट पैदा होती है, डीमोटिवेशन पैदा होती है। वो बैद को 1 करोड़ रुपए का, 1 बिलियन का, 100 करोड़ का एक आपने प्रोजेक्ट दे दिया और अथॉरिटी 1 रुपये की नहीं है कि बिजली का बिल ही जमा करा सकता है या टेलीफोन का, जब तक 10 बंदों के साइन ना हो। तो फिर मतलब देयर इज सम इसमें डिसएम्पावरिंग सिस्टम्स के अंदर प्रॉब्लम है, वो एसओपीज का इशू है। अगर उसको ठीक करेंगे और उसके साथ जब आप किसी को रिस्पॉन्सिबिलिटीज देंगे प्लस अथॉरिटी देंगे, फिर इज इक्वल टू एम्पावरमेंट एंगेजमेंट आती है, जिसको हम, ये मैं फैंसी वर्ड इसलिए आप लोगों के बोलता क्योंकि मैं किसी कोई नेस्ले में तो नहीं खड़ा, मैं आपको सरकारी इदारे की बात बता रहा हूँ कि वहाँ सबसे बड़ा इशू एसओपीज का है, पुराने ज़माने के रूल्स है। यकीन जाने मैं स्टेट बैंक में जब था मैंने पूरे 3 महीने लगा के अपनी ट्रेनिंग पॉलिसी लिखी, लर्निंग एंड डेवलपमेंट की पॉलिसी बनाई सर, और बड़ा सीना फखर करके मैं, वो हमारे होते थे गवर्नर के ऊपर लास्ट पोजीशन होती है, उससे नीचे डीजी होता है जिसको हम डिप्टी गवर्नर बोलते हैं जी, वो बेसिकली मेन बंदा होता है। गवर्नर के तो एक सेरेमोनीज होती है ना, तो सियासी पोस्टों पर हाथ से आया होता है, चला जाता है, साहब आकर आजकल है, वो आया चला गया, उसको बस फेस दिखाया हुआ है, अदरवाइज जो काम मॉनिटरी पॉलिसी तो नहीं बनाता ना, वो तो नीचे ने बनानी है, ठीक है। तो वो आगे प्रेजेंट करते हैं, सर ये देख लें, साइन कर दें, आके टीवी पे अपना एक भाषण दे दें, बस खत्म। वो एक सेरेमोनीज पोजीशंस होती हैं। वो जो मैं पूरे 3 महीने बना के 3 महीने पीछे पड़ रहा, सर पॉलिसी पढ़ ही ले सर जी, देखना तो साइन करना दूसरी बात, टाइम ही नहीं था जी। यू आर राइट कि वो एक प्रॉब्लम है कि हमारे पास प्रायोरिटी एरियाज क्या हैं। क्या बोला जी? प्रायोरिटी क्या है? चल चलाऊ है, डंग टपाऊ है, या वाकई ट्रांसफॉर्मेशन है? तो 2 तरह के होंगे ना। जब ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स होंगी, जरा की वर्ड है सुनिएगा। जब ट्रांसफॉर्मेशन करनी होती किसी इदारे की तो क्या करते हैं जी, और अगर जब डंग टपाऊ होता है तो कॉस्मेटिक रिफॉर्म्स होती हैं, लुक बिजी डूइंग नथिंग। अब ऐसी है, लुक बिजी। इंसान, ह्यूमंस आर वेरी डिस्क्रिशनरी ह्यूमन बींग्स, पीपल, काइंड। इंसान धोखा देते थे। आप इसमें लगा के देखें ज़रा, अपने जो मोबाइल जो कैमरे होते हैं सर, 99% लोग धोखा देते हैं कैमरे को सर। और जिस वर्क प्लेस के ऊपर, काम के ऊपर कैमरे लगे होते हैं, वहां ट्रस्ट लेवल बहुत नीचे होता है। जहां ट्रस्ट लेवल बहुत हाई होता है वहां कैमरे लगाने की जरूरत नहीं होती। कोई नहीं सीखना, कर ले जो भी करना है, ठीक है, उसका डिसीजन कर। क्योंकि जहाँ साहब सेशन में है तो जो भी डिसीजन करना कर ले, फिर तो वेट कर ले, फिर अगर ज़्यादा टाइम, घंटा, ठीक हो गया जी। तो वो एक बुनियादी जो आपका सवाल था जी, ठीक है जी, वो एक जब तक एम्पावरमेंट कल्चर डेवलप नहीं करते विथ सर्टन अथॉरिटीज, विथ सर्टन रिस्पॉन्सिबिलिटीज, दैट क्रिएट्स द, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं इनेबलिंग इन्वायरमेंट। क्या बोलते हैं? एम्पावरिंग इन्वायरमेंट। जब तक एम्पावरिंग इन्वायरमेंट नहीं होता, आपको अथॉरिटी दे दी, जिम्मेदारी दे दी, लेकिन डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी नहीं आई, तो अब क्या करेंगे जी? आपको ऐसे कह दिया कि जनाब ये सीढ़ी ले लो, ऊपर चढ़ जो, हाथ पीछे से बांध दिए, तो कैसे चढ़ेंगे आप? ठीक है, सॉरी जी, तुम्हारा जेडी है ऊपर चढ़ना, तुम्हें सीढ़ी भी दे दी है, लेकिन सर हाथ से खोल दो मैं डिग पाऊंगा सर। जब तक आपको हाथ नहीं खोलेंगे, आपके रोल्स, आपके गोल्स और फिर आपके रिसोर्सेज, ये मैनेजमेंट के 3 कीवर्ड्स हैं, याद रखिएगा। गुड गवर्नेंस के 3 प्रिंसिपल्स हैं। रोल्स गोल्स के अंदर क्लैरिटी, जब कंफ्यूजन होगा, आपका रोल क्लियर नहीं है, आपके गोल्स क्लियर नहीं है, आपको रिसोर्सेज नहीं दिया गया, यू कैन नॉट अचीव द टारगेट्स। वेरी सिंपल, एक्सीलेंस का सवाल ही पैदा नहीं होता। ठीक हो गया जी। तो अब जरा मैं इस पे आता हूँ, जरा नेक्स्ट कीजिए। अब मैं अगले आधा घंटे में जरा आप थोड़ी सी क्विक आपको एक एक्सीलेंस का कॉन्सेप्ट दूंगा। एनी क्वेश्चन, जर्नल दिल की कोई भड़ास है, निकालें सर प्लीज। किसी भी पब्लिक सेक्टर में काम करने के लिए 2 अट्रैक्शंस होते हैं, जॉब सिक्योरिटी एंड पेंशन बेनिफिट्स। अब जो ये रजिस्ट्रेशन सर हो रही है, इसमें इन दोनों के ऊपर जो है सर, वो अट्रैक्शन जाती हुई नजर आती है। सर आप क्या समझते हैं, जो आपकी यूथ है उसको पब्लिक सेक्टर ज्वाइन करने के लिए कौन से कंसिडरेशन या कौन से अट्रैक्शन सर उनके पास रह जाएगी? हाय, बड़ा प्यारा सवाल पूछा।
हाँ हाँ, हमारा ना बेसिकली ना मैं आपको एक इसका डीएनए बताता हूँ। आपका नाम क्या है? नहीं, कैंडी बासत, ये आपके लिए है, माशाल्लाह। प्लीज़ प्लीज़, ठीक है जी। आपको पता है कि बासत अब आज से कुछ साल पहले मेरा छोटा, मैं अपनी पहले ज़ात बताता हूँ, अपने एक छोटे बच्चे की बात बताता हूँ। पहले CSS का एक क्रेज़ था बच्चों में, अब नहीं है। वेरी सिंपल, सिर्फ जो बेचारे देहातों के लोग हैं वो पुराना मॉडल है, आज भी चक्कों से आके बेचारे रटे मार के पास करके, अंग्रेजी को उनका सबसे बड़ा रुकावट होती है, ठीक है जी। तो वो बेचारे दिन रात पास कर में होते हैं। मैं सिविल सर्विस अकेडमी जाता हूँ ना, वहाँ पता क्या होता है, मैं काफ़ी जो आपकी वार्डन अकेडमी है, जो बच्चे आते हैं नए नए पास हो गए CSS, तो आजकल की जो नई लॉट है उनकी बेचारों की पर्सनैलिटी बहुत वीक होती है, बहुत बेचारे छोटे शहरों से, लेकिन मेहनती होते हैं और पास कर लेते हैं इम्तिहान, तो हक होता है उनका जी, मेरिट पे आ गए हैं बस, ठीक है। लेकिन उनको बहुत ट्रांसफॉर्मेशन 2 साल चाहिए होते हैं उनकी ग्रूमिंग करने में, उनका एक्सेंट ठीक करने में लग जाते हैं ना इसमें। और जो अच्छे फैमिली के बच्चे हैं ना, ख़ानदान जिसे कहते हैं, अब वो उस पूरे 200 के बैच में, 150 के बैच में 5 होंगे बस। ये हो गया सिविल सर्विस का जो हाई स्टीम्ड नौकरी समझी जाती थी, अब नहीं है। फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं चीफ सेक्रेटरी साहब के कई दफ़ा घर जाता था, पीछे होतियाना साहब होते थे, वो फिर सिंध में चले गए, मैं अक्सर उनके घर जाकर ठहरता था। जब कराची में जाता था ना, वो सिंध में थे होते थे। उनका बेटा कनाडा से पढ़ के आया, उसने किया हुआ था। मैंने कहा तुम्हारे अबू तो DMG को टॉपर था ना, अब वाले साहब जो चीफ सेक्रेटरी तक पहुँच गए। मैं कहा तेरा दिल नहीं करता? कहता जी एजाज साहब मैं राजनपुर नहीं जाना। आपको पता है राजनपुर एक एग्जाम्पल है, तो किसी को सजा देनी होती थी ना, उसको DG हाँ ये राजनपुर भेज दो जी, वो बेचारे के 3 साल तो वहाँ सजाए काला पानी की, या इंटीरियर सिंध भेज दो। ये बलोचिस्तान में लोरा लाई जो होता है, वो ऐसी टॉप की पोजीशन है कि वहाँ जिसको सजा देनी उधर भेज देते थे। तो दूसरा मॉडल आ जाता आर्मी का। आपको मज़े की बात बताऊँ, अब मेरा छोटा जो बच्चा है वो, ठीक है, भाई मेरा यंगर ब्रदर, ही इज़ द सिलेक्टर आर्मी का ना, ही इज़ अ मेजर, ही इज़ आल्सो PhD इन साइकोलॉजी, ही इज़ पोस्टेड एट द कोहाटनी है जो ISSB सेंटर है। वो जब भी हम बैठते रहते हैं, अब वो मैं उसे ये सवाल पूछता हूँ कि बच्चे, अब जो अच्छे टॉप के बच्चे हैं वो आ रहे हैं तेरे पास? कोई ब्रिगेडियर का बच्चा आ रहा है, सूबेदार का तो आ रहा है बेचारा कमीशन लेने के लिए, सेकंड लेफ्टिनेंट बनने के लिए, ब्रिगेडियर का बच्चा नहीं आ रहा। कहाँ जा रहा है जी? वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहा है, वो नैनो टेक्नोलॉजी स्टडी कर रहा है, वो इस वक्त MIT में बैठा है ब्रिगेडियर का बच्चा। वो इधर क्या करेगा? इधर आके सेकंड लेफ्टिनेंट बन के किसी अपना जाके उधर पहाड़ पे कारगिल पे जाके वो बंदूकें लेके बैठेगा। दुनिया बदल गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसने PhD किया है या इंजीनियरिंग किया है AI में, या ग्लोबल चेन, या जो होती है, या आपके चेन जो पढ़ के आया, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करके आया, वो बंदूक लेके इंडिया के ऊपर बंदूक लेके कटेगा। यार मैं किस लिए पढ़ा अब्बा जी? आपने मुझे बाहर से अमेरिका से पढ़ा है, MIT से पढ़ा के बजाय साहब कुछ सेकंड लेफ्टिनेंट की 40,000 की नौकरी करेगा, वो 40,000 तो 1 मिनट का कमा लेगा। ये गॉट द पॉइंट। तो दुनिया सारा बदल चुकी है सर। ये टेक्नोलॉजी ना इज अ गेम चेंजर। टेक्नोलॉजी क्या जी? इज अ गेम चेंजर। अगर ये ना होती, हम उसी पैराडाइम्स में, इकबाल का एक शेर है, नेक्स्ट करें जी, मैं आगे करता हूँ। ये पहले दुआ सुन लें जी, ये दुआ बड़ी काम आएगी आपको। आपके आधे सवालों के जवाब ये दुआ दे देगी। ये वैसे बहुत बड़ी एंटी स्ट्रेस ये प्रेयर है जी, कि अल्लाह गिव मी द पेशेंस टू एक्सेप्ट द थिंग्स आई कैन नॉट चेंज। ए खुदा मुझे तौफीक दे सब्र की जिन चीज़ों के बारे में तब्दील नहीं कर सकता। दूसरा है जी, अल्लाह गिव मी द करेज टू चेंज द थिंग्स आई कैन, एंड अल्लाह गिव मी द विजडम, जिसको हम शऊर, फहम और दराक बोलते हैं, टू चेंज द टू एक्सेप्ट द थिंग्स व्हिच वी कैन नॉट चेंज। ठीक है, टू डिफरेंशिएट व्हाट वी कैन चेंज, व्हाट वी कैन नॉट चेंज, जिसको मैं बदल सकता हूँ या नहीं करता। सर ये 3 चीज़ें हैं सर। ये तो इंसान के, आपने किसी ने किताब पढ़ी है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल, उसकी एक हैबिट है जी। यहाँ मैं उसको एक छोटी सी आपको एक्टिविटी देता हूँ ताकि आपको ये बिलाल बड़ा मज़ा आएगा। हाँ जी, ये एक किताब, उसकी किताब का नाम है जी 7 हैबिट्स। किसी ने पढ़ी है? फर्स्ट हैबिट का नाम क्या है? एनीबॉडी नोस? देखिए ये अब लिटमस टेस्ट है। अब मैं सिस्टम की बात नहीं कर रहा, अब ये कमांड, चेंज ऑफ कमांड की बात नहीं कर रहा, अब मैं सेल्फ डेवलपमेंट की बात कर रहा हूँ। इसका किसका हक है जी इसके ऊपर? एलडीए का? नो। करियर मैनेजमेंट आपका काम है? नो। एलडीए का काम है? नो। दिस इज योर जॉब, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप अपने स्किल्स इन्हांस करते हैं, आपको पता है सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है सरकारी इदारों का आज के लेटेस्ट दौर में? सर हमारे स्किल्स ऑब्सोलीट हो चुके हैं सर, विद ड्यू रिस्पेक्ट सर। करंट सेट ऑफ स्किल्स आर ऑब्सोलीट सर। 95% लोगों को आज भी टेक्नोलॉजी का नहीं पता।
एक्सेल के ऊपर छोटा सा पुराना ज़माना हो गया, 20 साल पहले आया था, आज भी एक्सेल नहीं पता किसी को एक्सेल के ऊपर क्या फार्मूला लगता है, कैसे मैंने काम कर सकता हूँ 5 मिनट के अंदर अपनी शीट बना सकता हूँ जो कि मेरे 3 घंटे में बनती है, एक्सेल आपको 10 मिनट बना देगा। अब एक्सेल भी पुराना हो गया, अब तो मोबाइल एप्लीकेशन आ गई, दुनिया जान की। और मेरी बेटी यार, छोटी बेटी 7th 8th में पढ़ती है, मुझे प्लांट्स का बहुत शौक है। वो ना मैं अपने प्लांट्स लगवा रहा था, तो मैं आज तक ना प्लांटों के नाम बड़े मुश्किल हैं, ये जी अपना ये फ़लाँ है, ये फ़लाँ नाम है, बड़े बायोलॉजिकल नाम होते हैं ना इसकी, बोटेनिकल नेम। उसने कहा पापा ये क्या कर रहे हैं आप? और मैं उधर गया नर्सरी प्लांट्स खरीदने के लिए, यार मैंने कहा वो वाला फियास्का है, कोई एक पाम है, एक दूसरा पाम होता है, एक तीसरा पाम की 6 किस्में हैं। कहती पापा मैं आपको बताती हूँ। उसने मुझे बताया, उसके पास ना गूगल की एक एप्लीकेशन थी, उसने तस्वीर ली, उसने रिकॉग्नाइज किया और नीचे पूरा डिस्क्रिप्शन आ गया कि इसका ये प्लांट है, इसकी ये हाइट होती है, ये फीट होती है, ये होता है, विद इन नैनो सेकेंड। उसका नाम, मैंने कहा यार माली को कहा उसका जो नर्सरी वाला, यार ये वाला प्लांट है, ये फोटो भी आ गई और उसका नाम भी आ गया। उस वक्त पहचान, बस मुझे उस वक्त मेमोरी नहीं हो रही यार कौन सा प्लांट था यार मैंने लेने आया था, नाम उसका कौन सा था यार, कौन सा पाम था, ये अपना गोल्डन पाम था, सिल्वर पाम था, वाइट पाम था, कौन सा पाम था। ट्रस्ट मी, ज़्यादा टेक्नोलॉजी। बच्चा मुझे बता रहा है अंकल ये वाला पाम चाहिए, उसने फोटो दिखाई, हाँ ये पड़ा हुआ मेरे पीछे। सर टेक्नोलॉजी सर, और टेक्नोलॉजी से हमारे सरकारी इदारे सर कोई 1000 मील दूर हैं सर। मैं तो समझता हूँ सबसे पहले एडमन वालों से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, सर जी आप अपना एक TNA करें। क्या बोला जी? TNA स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग नीड असेसमेंट। जब तक आप नीड असेसमेंट नहीं करेंगे, आज का सेंस तो एक प्रीएम्बल है सिंपल। ट्रेनिंग नीड असेसमेंट जिसको कहते हैं डायग्नोस्टिक एनालिसिस, एक पूरा एक जिसे कहते हैं लेजर, जैसे कहते हैं ना आप डॉक्टर के पास जाते हैं, अभी गलती से कह दें कि जी मुझे डायबिटिक है, तो डॉक्टर क्या करेगा, क्या कहेगा, ट्रीटमेंट करेगा, कहेगा पहले अपना टेस्ट करा के ले आओ तो डायबिटिक है कि नहीं। सिंपल है ना जी। कहेगा जी आपको कट लगना है, आपको छोटा सा इंजरी हो गई है, मैं अभी आपको इंजरी इसमें लगाऊंगा, वो तो आपको उल्टा हो जाएगा। अगर आपकी शुगर लेवल हाई हुआ तो ये जख्म आपको खा जाएगा। सर एक्सक्यूज़ मी, मैं आज को ऑपरेट नहीं करूंगा जब तक आप मुझे अपना, आपको कहेगा आपको शुगर लेवल हाई, एक्सक्यूज़ मी 3 दिन तक ये मेडिसिन खाएं, इसको डाउन करें, फिर मैं आपको मेडिसिन दूंगा। सर वेरी सिंपल बेसिक चीज़ है ये। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल चेंज के अंदर महबूब साहब ये आपने ये पॉइंट्स नोट कीजिएगा, ऑर्गेनाइजेशन की चेंज के अंदर, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर, उसको लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए छोटा सा एक TNA कीजिए अपने अंदर, वो मैं आपको गाइड कर दूंगा पूरा कि ट्रेनिंग नीड असेसमेंट कैसे होता है, नीड असेसमेंट कैसे होती है, और मुख्तलिफ टीयर्स की जो नीड्स कैसे डिस्कवर होती हैं। एक सीनियर मैनेजमेंट होती है जिसकी लीडरशिप की ट्रेनिंग होती है, एक मिडिल मैनेजमेंट होती है जिसकी ऑपरेशंस की ट्रेनिंग होती है, और नीचे वाले लेवल होते हैं जिसकी टेक्निकल स्किल्स की ट्रेनिंग होती है। ये पूरा एक पैरामीटर ट्रेनिंग का ऑफ नीड्स का, कि नीचे वाले लेवल को आपके फ्रंट एंड हर बंदा IT सेवी होना चाहिए, नहीं कि उसके ऊपर उंगलियां लगाए, उसको पता यार ये 5 मिनट में ये शीट बाहर आ जाती है। फिर आपको जो सॉफ्टवेयर लगाए हुए हैं जिस पे आप काम हो रहे हैं उसको अपडेशन की जरूरत होती है। अगर SAP लगा लिया, फलां लगा लिया, इट्स टू टेक्निकल कि अगर कोई आम बंदा उसमें बैठ ही नहीं सकता अनटिल ही इज ट्रेन्ड। क्या कहना जी, ERP लग गया, दूसरा लग गया जो आपका करेगा, असल में वो आपको बेनिफिट करेगा। 90% सरकारी इदारों में अगर ERP लगा दो ना, SP लगा दो, उल्टा पड़ जाता है। कहते हैं यार ये थोड़ा कंसल्टेंट बुलाओ उनको, उसके लिए वो बेचारे बाहर जाके अपनी दिहाड़ी के चक्कर में होते हैं, वो आके अपने बैठ के अपने काम करवा रहे होते हैं। अरे वही काम आप 3 महीने किसी बंदे को ट्रेनिंग दे दें अपने स्टाफ को, वो उसमें अंदर का उसका स्किल भी डेवलप हो जाएगा, उसकी एम्प्लॉयबिलिटी। आपको पता है इस मुल्क का सबसे बड़ा मसला है अनएम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयबिलिटी है। MB के जो कचरा निकल रहा है, मैंने MB पढ़ाना छोड़ दिया, पता 2015 के बाद मैंने MB छोड़ दिया। मुझे IB वाले कहते थे सर आप ना पढ़ा छोड़ें, मैंने इतने साल पढ़ाया यार, इतने 15 साल मैंने IBA को पढ़ाया, अंदर पढ़ाया। मैंने कहा जी अब मैंने छोड़ दिया। उनका क्यों नहीं छोड़ दिया? मैंने कहा MB का मतलब मैंने चेंज कर दिया है ना। MB का मतलब क्या था जी, मास्टर्स इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये मैंने चेंज कर दिया 15 में ना, मैंने इसका नाम रख दिया मेंबर्स ऑफ बेरोजगार एसोसिएशन। क्या जी, मेंबर ऑफ बेरोजगार। तो यार इतनी बेरोजगारी हो गई है, MBA लेकर 20,000 की नौकरी नहीं मिल रही, इंटर्नशिप नहीं मिल रही यार। आप इस बार से कर रहे होते हैं अपने कज़नों के लिए, बहन भाइयों के लिए, यार फलां कंपनी में मेरे बच्चे को, बहन को, भाई को यार इंटर्नशिप करवा दो, एंकरों में, ये जसकॉन में, फलां में, नेस्ले में। क्या ख्याल है जी, नहीं मिलती इंटर्नशिप, नहीं मिलती, पेड मुफ्त में काम करा लो जी, बस बैठा के, वो भी जलील करते हैं, कुछ सिखाते हैं, कुछ नहीं, बैंक में भेज दो तो अकाउंट ओपनिंग पर डाल दिया। वो एक बच्ची बेचारी को मैं गया अकाउंट कैश काउंटर पर, तुम इधर क्या कर रही हो? वो जी मैं इंटर्नशिप कर रही हूँ। मैं कहा तुम्हें कोई टेक्निकल काम सिखाओ, ये कैश का काम है कोई? तो मैं भी सर पे, उसने कहा चलो यार जी बैठा के कर लो।
तुम्हें कोई क्रेडिट सिखाएं, तुम्हें फॉरेन एक्सचेंज सिखाएं, तुम्हें कोई टेक्निकल चीज़ सिखाएं, ताकि तुम बाहर जाओ। सर वो पीस ऑफ पेपर लेना था ना, एक्सपीरियंस 3 महीने का सर्टिफिकेट, उसके लिए आई हूँ। बट नो लर्निंग अटेंशन, और ना वो सिखाने वाले हैं ना वो सीखने की नीयत है। 3 महीने जस्ट वेस्ट करने हैं, माँ बाप को धोखा देना है। सर बुरा ना मानिएगा सर, आप जैसे जो पेरेंट्स हैं सर, करोड़ों रुपये लाखों रुपये लगा के बच्चों को तालीम दिलवा रहे हैं और फॉलोअप नहीं करते कि पढ़ क्या रहे हैं। ये रिडंडेंट सारी जो कॉम्पिटेंस है। और कोविड ने द की लर्निंग्स ऑफ कोविड की 2 ही की लर्निंग्स हैं जी। मैंने पिछले कोई 400 बंदों के मैंने टॉक्स की होंगी, इंटरव्यूज किए होंगे इस 8-10 महीने में। सर यकीन जाने का 2 ही करनी है कि कोविड ने 80% लोगों के स्किल्स जो पुराने थे, स्किल सेट चेंज कर दिए, और उस पुराने स्किल सेट से हम नई दुनिया को नहीं फेस कर सकते जी। अदरवाइज इकबाल का शेर है, जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर के मफाजात। आप मर जाएंगे, ख़त्म। कुदरत का और ही नेचर है। अल्लाह की सुन्नत बड़ी डिफरेंट है। अल्लाह जिंदों के साथ, अल्लाह मुर्दों के साथ नहीं होता यार। अल्लाह जिंदा है ना जी। जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा। तो पहला क्या जी, लेसन्स के आपको अगर अपने स्किल, आज के जो ये लोग बैठे हैं, आप लोग बैठे हैं, आपके बहन भाई, फैमिली या आपका स्टाफ जो आपके नीचे माशाल्लाह जो काम करने वाले लोग हैं, 3 चीज़ें सर फोकस होता है जी, एक्सीलेंस आती है। नंबर 1 स्किल सेट, वैल्यू सेट एंड माइंड सेट। जब तक इन तीनों के अंदर अपडेशन नहीं आएगी, आप कभी दुनिया को फेस नहीं कर सकते। आई रिपीट, स्किल सेट। अब स्किल्स की बात मैं करूंगा थोड़ा सा आगे। स्किल सेट के अंदर क्या आता है, आपकी कॉम्पिटेंसीज। इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया क्या है, हमारी 2 ही हैं जिसकी वजह से तबाह हुआ है मुल्क। हमारा मसला क्या है, या बदनीयती या नाअहलियत। 2 इश्यूज है ना जी, जिसको हम गवर्नेंस कहते हैं ना, वो 2 चीज़ों का नाम है सर। जिसको गुड गवर्नेंस और बैड गवर्नेंस सारा दिन सुनते रहते हैं ना। मैंने 20-25 साल इन 2 लफ्ज़ों पे, लीडरशिप और गवर्नेंस पे सारे अपनी किया, रिसर्च किया। क्या चीज़ों का नाम है, इंटेंशन। क्या पॉजिटिव इंटेंशन और प्लस हाई कॉम्पिटेंस इज द गुड गवर्नेंस। इसका कॉम्पिटेंस लेवल लो हो, या आपको फार्मूला देता हूँ, बड़ा मज़ा आएगा। ये मैंने CSS अकेडमी में तो बहुत जाके पढ़ाता हूँ, खासकर उनको कराता हूँ जो कम अज़ कम 18वें 19वें ग्रेड की ट्रेनिंग करने आते हैं ना, 20वें ग्रेड की, तो उनको मैं ये मॉडल पढ़ाता हूँ। ये मैट्रिक्स है, ठीक है, एक्सीलेंस का मैट्रिक्स है सर। आपको स्लाइडों से ज़्यादा इसमें मज़ा आएगा सर। ये मैट्रिक्स है जी, ठीक है। ये 4 इसके हैं, ये एक्सेसेस है, ठीक है, वाई एक्स, ये एक्सेसेस है, ठीक है जी। अब ये क्या है जी, ये लो है, ये लो है, ये हाई है। क्या जी, देखिएगा जी, ये नीयत और अहलियत मॉडल है। क्या बोला जी, नीयत, इसको इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस मॉडल बोलते हैं, ठीक है, इंटेंशन एंड कॉम्पिटेंस मॉडल, ठीक है जी। ये नीयत है, जिसको इंटेंशन बोले, इंटेंट कहते हैं, ठीक। और ये कॉम्पिटेंस है, ठीक है, जिसको हमने अहलियत बोलते हैं जी, ठीक। ये नीयत अहलियत, अगर ये वाला होगा, देखिए जी, जिसकी नीयत हाई, फिर मैं ऊपर से आता हूँ, ठीक है जी। ये हाई यानी कि जिसकी अहलियत कॉम्पिटेंस लेवल नहीं, अगर ये 1 है तो ये 10 तक है, तो जिसके 10 और इधर से भी हाई, तो जिसके 10 × 10, जिसके 100 हैं, ये 90 मार्क्स हैं, ठीक है, ये 100 मार्क्स हैं। इस मॉडल को क्या कहते हैं जी, ये वाला मॉडल क्या है जी, कि जिस मुल्क के अंदर जिसकी बंदे की नीयत अच्छी है और जिसकी अहलियत पे कोई शक नहीं है, अगर वह इंजीनियर है तो वो वाकई इंजीनियर उसने पढ़ के किया है, मेडिकल है तो वाकई डॉक्टर है, तो वो जिस लेवल पे ये 90 या 100 वाला ये मैट्रिक्स का ये क्वाड्रेंट, इसको हम 1 कह देते हैं। इसका मतलब है कि इसको मैंने नाम रखा हुआ है ब्रेन ड्रेन। क्या बोलते हैं जी, इस मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया एक्सीलेंस ना आने का, क्योंकि वी आर मीडियोकर नेशन, बुरा ना मानिएगा। जो टॉप के जो होता है ना, जैसे वो पेटी खोलते हैं ना जी, अच्छे अच्छे दाने ऊपर होते हैं ना एप्पल्स के, वो निकल जाते हैं, नीचे तब खोलते तो पता चलता है असली पेटी तो नीचे है भी। तो जो अच्छे वाले दाने होते हैं ना जी, डॉक्टर, बेस्ट प्रोफेशनल, बेस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, बेस्ट इंजीनियर, वो सारी लौट जाएगी कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA या बाकी कोई UK या कोई और बड़ा लिस्ट में। इसको क्या कहते हैं जी, जिसकी नीयत अच्छी, जिसकी नीयत अच्छी, वो कहाँ चला गया जी, ब्रेन ड्रेन। क्लियर हो गया जी। दूसरा मॉडल, ठीक है जी, जिसके पास कॉम्पिटेंस लेवल हाई, कॉम्पिटेंस लेवल क्या जी, चलो अब इसको मैं बाद में करता हूँ। अब इसके ऊपर आ जाएं, ये वाला मैं ऑपोजिट करता हूँ, ये दूसरा है, Q2 है जी, जिसकी बदनीयत और नाअहल, वो सदर पाकिस्तान, इसको मैंने रखा हुआ है। इसके हेड ऑफ
हेड ऑफ स्टेट कहते हैं या हेड ऑफ डिपार्टमेंट्स कहते हैं। अब आप अपना ये फार्मूला अपने लगा सकते हैं, ठीक है जी। हेड, कोई भी हेड होता है जो नाहल बंदा, और वो क्या है जी, टॉप पे होता है। पंजाबी वो कहते हैं कि चलो छोड़ दे, रहने दे। तो ये क्या है जी, हेड उधर बना होते हैं, सारे हेड जो ना, ब्रेन ड्रेन वो चला गया बाहर, बदनीयत और नाहल नीचे वाला ये हेड बन गए और ये बाहर चले गए। और उसके बाद ये आ गया जिसके पास नीयत तो बहुत अच्छी है लेकिन कॉम्पिटेंस लेवल ना CSS कर सका, ना डॉक्टर बन सका, ना इंजीनियर बन सका, ना किसी और प्रोफेशनल में आगे चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सका, ठीक है जी, ना LDA में आ सका, ठीक है जी, असिस्टेंट डायरेक्टर की पोस्टें आई तो ना आ सका, वो क्या बन गया, स्कूल टीचर। ये है टीचर मॉडल। 99.99% जो लोग टीचर है ना जी, वो हाईली इनकॉम्पिटेंट है। 1% एक्सेप्शन मैंने रखी है जो बाय चॉइस है, ये रिसर्च है। 2% कर सकता हूँ आपकी, अगर आप नाराज ना हो जाए। मजाक कर रहा हूँ मैं, आई एम जस्ट किडिंग। यकीन जाने कि पाकिस्तान में टीचर कौन बनता है जी, कोई शौक से नहीं बनता, टीचर बन जाता है। तो ये टीचर मॉडल है, या इसको मैं कहता हूँ टीवी का एंकर है। जितने नलायक कुछ नहीं कर सके स्वाय टेलीविजन के ऊपर आके अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। इस मुल्क में जितनी फ्रस्ट्रेशन चैनल्स के एंकर्स ने फैलाई है ना जी, किसी ने नहीं फैलाई। बुरा ना मानिएगा जी, सच है कि नहीं? बस हैं जी, हो गया, समझ गए, यू आर राइट सर। ये वाला मॉडल बड़ा मजे का है, तो ये समझ आ रही है। ये क्या है जी, नीयत अच्छी है लेकिन नाहल, ये इधर आ गए। जिनके दोनों अच्छी हैं वो बाहर चले गए, और जो नलायक नाहल और बदनीयत वो इधर आ गए। ये वाला मजे का एरिया है जी। हाँ, अब जरा सुनिएगा, जिसकी कॉम्पिटेंस लेवल बड़ी हाई है। नहीं, मैं एक नाम रखा, मैंने इसका नाम रखा ब्रेन ड्रेन, इसका नाम रखा है सदर पाकिस्तान, इसका नाम रखा है टीचर, इसका नाम रखा है DMG, इसका नाम रखा है विद अपॉलॉजी, अगर कोई DMG से है तो मैं माफ़ी मांग लेता हूँ, ठीक है जी। इसका नाम क्या जी, डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप। इस मुल्क का जो सत्यानाश है, सभा सत्यानाश हुआ है, वो इस ग्रुप से हुआ है। क्यों? कि जो डिसीजन मेकिंग है अल्टीमेटली पूरे मुल्क की ना फेडरल मिनिस्टर के पास है, ना किसी पॉलिटिशियंस के पास है, इसके पास होती है जी। और उसके दिमाग में खुद नास है कि मैं DMG को, मैं क्योंकि टॉपर हूँ, पहले टॉप 20 का हूँ, तो इसलिए मुझे दुनिया जहां के सारे स्किल्स आते हैं। एक ऐसा अल्यूजन है, कैसी खुद फरेबी है कि इम्तिहान पास किया था 25 साल पहले, उस वक्त एक रट्टे मार के, तो अब उस वक्त का जो इल्म है आज भी मेरे लिए वही एप्लीकेबल है, अनफॉर्चुनेट। और एक सेरेमोनियसली एक ठप्पा लगवा के डिग्री ले रही कहीं से, और लो जी देखो जी मैं तो बाहर से पढ़ के भी आ गया हूँ। तो वो एक ऐसा बदकिस्मती है कि ये वाला जो ना एक एक्सीलेंस के अंदर ना सबसे बड़ी रुकावट है। ये उमर सैफ का जो कल ट्वीट पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, देखा, उसने बड़ा प्यारा एनालिसिस पुराना उसको रीट्वीट किया है, बड़ा दोस्त है उमर सैफ। उसने एक 4 लाइनों में पब्लिक सेक्टर की सारी अनॉटमी को डाइसेक्शन किया है। वजाहत गुजरा नज़र से वो कल का उमर सैफ का बड़ा वायरल हुआ हुआ, उसको मैंने कल मुबारकबाद, वो पुराना ट्वीट था पिछले 2019 का। उसने ये कहा है कि पब्लिक सेक्टर में जो परफॉर्मेंस है, उसको जो बंदा अच्छा परफॉर्मर है उसके लिए कोई रिवॉर्ड नहीं, कोई कुछ नहीं। नंबर 2, और जो बैड परफॉर्मर है उसके लिए कोई पनिशमेंट नहीं, जिसकी वजह से सारा सिस्टम ब्लॉक हो गया। बुरा ना मानिएगा, पंजाब गवर्नमेंट तो चलो एक हमारा एक सूबा है, आप कभी मेरा यकीन जानिएगा, मैनी टाइम्स, डजन्स टाइम्स आई गो टू द सेक्रेटेरिएट, जो इस्लामाबाद सेक्रेटेरिएट की बात कर रहे हैं, मैं वहाँ जाता हूँ। एहसन इकबाल मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, प्लानिंग में जब वो फेडरल मिनिस्टर थे, मैं अक्सर उनके टीम का हिस्सा था, उनकी काफ़ी उनके साथ प्रोजेक्ट्स वगैरह में उनकी हेल्प किया करता था। तो मैं जाता था ना वहाँ, उन्होंने ना सर 30 के करीब ना चीफ इकोनॉमिस्ट, ये वो याद होगा आपको 5 साल पहले जब वो प्लानिंग को हेड कर रहे थे, उन्होंने हायर किए। कोई MIT का, स्टैनफोर्ड का बच्चा पढ़ा हुआ, वहाँ से छोड़ के उन्होंने जॉब्स के लिए अप्लाई किया था। लोगों ने आए, उनको शॉर्ट लिस्टिंग करके M1 M2 ग्रेड नहीं होता, 3 लाख 2 लाख ट्रैक में ना, उस वक्त 3 लाख रुपए सैलरी पे उनको ना कोई 25-30 चीफ इकोनॉमी के और अपना प्लानिंग के फलां के ना बच्चे रखे, टॉप यूनिवर्सिटियों के, आईवी लीग्स की यूनिवर्सिटियाँ थी सारी, कोई हार्वर्ड का, कोई स्टैनफोर्ड का, ठीक हो गया जी। बड़ी हायरिंग की, उनको कमरा दिया हुआ था। मैं उसमें जाता था, मैं बैठ के ना देखता था, वो लड़के ना 2-3 जो पढ़े लिखे, पहले 2-3 महीने उनका मोटिवेशन लेवल बड़ा हाई था कि जनाब हम देखें नहीं, प्लानिंग मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं, पाकिस्तान को ट्रांसफॉर्म करने आए हैं।
मैं एहसन साहब के पास बैठा था तो उधर मैं उनके लड़कों के साथ बैठ जाता कि जहाँ से ज़रा गपशप लगाओ ज़रा। 2 महीने सीन बदला, 3 महीने बाद फिर मैं इस्लामाबाद गया, फिर मैं एहसन भाई में आ रहा हूँ, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, पढ़े लिखे आदमी हैं। और मैंने कहा सर जी वो 11 बंदे आधे रह गए। मैं क्या हुई ये तो 30 बंदे सन, 15 रह गए ने 3 महीने में छोड़ के जी। और मैंने कहा सर ये तो बड़े चीते थे, ये आपने दुनिया के बेस्ट ब्रेन्स पाकिस्तान के लिए मंगवाए थे कि पाकिस्तान की प्लानिंग करेंगे अगले 10 साल की, 20 साल की, 2025, 2030 की मिशन स्टेटमेंट बनाई उन्होंने। ये चीज़ें होंगी, ये ट्रांसपेरेंसी आएगी, टेक्नोलॉजी आएगी। कोई टेक्नोलॉजी का बंदा था, कोई डाटा एनालिटिक्स का था, कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सारे हाई प्रोफाइल। एक लड़का जो बेचारा बड़ा इंतहाई फ्रस्ट्रेटेड मेरे से अपने दिल की बात करता है। मैं कही वेयर दे आर गॉन, यार कहाँ चले गए सारे? कहता वापस चले गए, अमेरिका जो यहाँ से आए थे वापस चले गए। उन्होंने पाकिस्तान में ये 3 लाख की नौकरी करने आए थे, कोई इतने पैसे तो डॉलर में करें तो उनका तो कुछ भी नहीं है सर। क्यों जिस बंदे ने PhD किया हुआ है नैनो टेक्नोलॉजी में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, वो 3 लाख के लिए इधर आएगा पाकिस्तान में। फिर क्या हुआ? कहता सर बुरा ना मानिएगा, वो जो नहीं हमारा मेडिकल था या हमारी जो लीव्स थी या हमारा कुछ अटेंडेंस, सर वो एक सेक्शन या असिस्टेंट लेवल का अफसर होता है या सेक्शन अफसर, वो हमारी अटेंडेंस लगाता है, वो हमारी लीव का रिकॉर्ड रखता है। वो एक और बंदा को छुट्टी लेने मांग जाए तो उसको ये 4 बातें सुनाता है। और उसके बाद कोई मेडिकल का रिक्लेम कर दिया जाए, सर मैं दवाई ली थी हॉस्पिटल, तो उसको डबल चेक करवाता है कि फायदा नहीं जाली बिल तो नहीं आएगा। कहता सर जी असी इतने कम नहीं कर। इस टॉक्सिक इन्वायरमेंट है क्या जी? टॉक्सिक इन्वायरमेंट में वी कैन नॉट कंटिन्यू सर विद द हाई स्किल सेट, माइंड सेट एंड स्किल सेट। जिनके पास इंटेंशन बड़ी हाई और जिनके पास वो अगेन जो ब्रेन ड्रेन वापस आया, जरा सुनिएगा, ये सबसे बड़ा डेंजर होता है। जो बेचारे वापस भी आए और फिर वापस, तो इसको कहते हैं, मैं इसको अंग्रेजी में बोलता हूं वॉमिट करना। क्या बोलते हैं जी? टैलेंट को हम वॉमिट करते हैं, टैलेंट को छोड़ते नहीं, क्या करते हैं? वॉमिट कर देते हैं कि भाईजान ये आपके लिए जगह नहीं है। तो ये चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से वो फिर आ जाते हैं। सर इधर फिर बैठ के इस जगह पे काम करना, इस सारे टॉक्सिक एनवायरनमेंट में फिर भी डिलीवर करना, ये जहाद है। बहुत बड़ा रेजिलियंस जिसको कहते हैं ना, आपका टॉलरेंस लेवल यहां से 1 से 10 तक चाहिए। यू कैन इफ यू वांट टू डिलीवर, अदरवाइज सिस्टम आपको वॉमिट करेगा, आप डेड वुड बन जाएंगे, पॉइंट आ जाएगा ऑफ। आपने क्या करना है जी, उस घोड़े की तरह हो जाना होता है। घोड़ा पता है बग्गी होती है, अली तुम्हारी शादी में शायद वो घोड़े लगे होंगे 6, ठीक है? बग्गी में ना 6 घोड़े चलते हैं ना, उस घोड़ों में ना पता है वो जो बग्गी को, जो घोड़ा को खींच रहे होते हैं, कितने होते हैं जी? 2 घोड़े, बाकी 4 उसके साथ डांस कर रहे होते हैं, वो चल नहीं रहे होते साथ, उसको खींच नहीं रहे होते उस वजन को। सर कोई भी डिपार्टमेंट, कोई भी इदारे के अंदर कोई जो डिपार्टमेंट्स बने हुए हैं, वो 10, 20, 30 डिपार्टमेंट्स बने होते हैं, उसके अंदर 2 बंदे काम करते हैं और बाकी सारे एक्टिंग करते हैं। एक्टिंग कर रहे हैं कि सर हम खींच रहे हैं, सर ये सारा डिपार्टमेंट हमने संभाला हुआ है, सर हम चले जाएंगे तो नीचे गिर जाएगा, सर ये हम चला रहे हैं। और जो बेचारा शरीफ बंदा काम कर रहा है उसको ना वो मिलते हैं। हम अंग्रेजी में पढ़ते थे ना, अंग्रेजी में इडियम पढ़ते थे, वजाहत, एक डार्क हॉर्सेस, एक ठीक है ना, एक होते थे हॉर्स एंड कैटल, छोटे तो हमने देखा हुआ ना, उसमें हॉर्सेस होते हैं, ठीक है? एक होते हैं वर्किंग हॉर्सेस, जो बाहर वाले तांगे में लगे होते हैं, वो घोड़े जिनको छांटे पड़ते हैं, खाना भी मिलता है, वो क्या करते हैं, उसको क्या कहते हैं जी? वर्किंग हॉर्सेस। एक होते हैं जो डांसिंग हॉर्सेस, जिनसे कुछ नहीं काम कराया जाता, साल के बाद प्रमोशन लेने के लिए आ जाते हैं या फिर डांस करवाया जाता है उनसे पूरे साल में 1 दफ़ा। और जब कोई बड़ा बंदा आ जाए उसको सामने लगाते हैं, सर देखे कि बड़ा अच्छा वर्कर है, हालांकि वो बाकी पूरा साल नजर ही नहीं आते। वो जो होते हैं डांसिंग हॉर्सेस, सिर्फ दिखाने के लिए। और तीसरे होते हैं डार्क हॉर्सेस, ये बड़े क्रिटिकल हैं। ये कौन से होते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हैं बिलाल? नहीं, ये बेसिकली छुपे होते हैं, नजर नहीं आते। डांसिंग वाले तो नजर आते हैं, ठीक है जी, वर्किंग वाले भी नजर आते हैं, गौतम की तरह काउंटर से बाला सील भी हो रहे हैं, लोगों की गालियां भी खा रहे हैं। और वो वाले जो घोड़े होते हैं वो कौन से होते हैं जी? डार्क हॉर्सेस। वो बेसिकली पीछे कहीं छुपे होते हैं, बैठे होते हैं, नजर ही नहीं आते। थोड़ी कोई एडमन में हो या कहीं और जगह बैठा होता है, और वो डांसिंग वालों से डांस करवाते हैं और वर्किंग वालों से काम कर। अब छोड़ दे ये धंधे तकरीब, समझ आ गया? बात तो सच है मगर बात है, अब क्या करें, परवीन शाकर बेचारी ने क्या जुमला बोल दिया, बात तो क्या करें, वो छुपे होते हैं डार्क हॉर्सेस। समझ आ गया? अब आप यू कैन आइडेंटिफाई, आपको समझ आ गया? बस आपका नाम क्या था? बिलाल, सॉरी। तो बिलाल आपको पता चलेगा ये होते हैं ना डार्क हॉर्सेस,
और दफ्तर के बाद दफ्तर लगता है उसका, पता आपको? ये देखो ना जी, बस हंस लें खुल के, कोई बात नहीं, हम ट्रेनिंग सेशन कर रहे हैं, यहाँ कोई पॉलिसी मेकिंग नहीं हो रही सर जी, ठीक है जी। तो क्या बोला जी कि वो दफ्तर के बाद बैठते हैं, ये मैंने ये आपको एक इंडिकेशन दे दी है। डार्क हॉर्सेस कब बैठते हैं जी? जब सब चले जाते हैं, फिर वो बैठ के अपना प्लानिंग करते हैं कि किससे डांस कराना है। सर जी सारे ही हैं, 4 बजे के बाद करते हैं। अच्छा 4 बजे का है जी। लो जी आगे चले शफक। अच्छा जी ये देखें, ये बड़ा प्यारा है जी, अब मैं ज़रा क्विक करूँगा। देखिए जी, ये ना एल्वन टॉफलर, वन ऑफ द गुरु ऑफ द मैनेजमेंट साइंसेज, ही यूज्ड टू से the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write but those who cannot। नेक्स्ट सर, ये देखिए जी, ये क्या जी, लर्न ऑन, ये सुन के जाइएगा ज़रा, ये ज़रा एक बड़ा टिप है, बड़ी क्रिटिकल एरिया है जी, लर्निंग, अनलर्निंग एंड रीलर्निंग। इफ़ यू वांट टू मेक एन एक्सीलेंस इन आवर लाइफ, पर्सनल लाइफ, तो ये लाइफ का एक सर जी सबसे बड़ा एंटीडोट है आपका, ज़िंदगी का आगे बढ़ने का सबसे बड़ा फिलॉसफी है। आपके बच्चों के लिए, खुदा के लिए ये ट्रेनिंग अपने लिए ना समझिए, अपनी फैमिली के लिए समझिए, अपने स्टाफ के लिए समझिए, आपकी सेल्फ के लिए समझिए। ट्रस्ट में, जब मैं नौकरी करता था सरकारी, जैसे आप बैठे हुए, मैं भी इसी तरह बैठता था, मुझे बड़ा पैशन था। अफसरी उफसरी तो निकल गई, तो निकाल दी थी दिमाग से। हमें कहते थे यार मुझे फलां जगह कोई ट्रेनिंग पे भिजवा दो, लम्स है उसमें, एग्जीक्यूटिव सेंटर है, राउजिंग जिसे हम बोलते हैं। अब मेरे को राउजिंग किया आज तक, लम्स का जो राउजिंग सेंटर है पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर है वो। लम्स तो यूनिवर्सिटी है ना, वो MBA शैम्बीए कराते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। उनका एग्जीक्यूटिव वाले उसका राउजिंग लिखेंगे ना गूगल में या लम्स लिखेंगे, तो वन ऑफ द फाइनेस्ट है अल्हम्दुलिल्लाह। और उसके बाद अगर पाकिस्तान में दूसरा राउजिंग बनाया, जहां ने बनाया, ठीक है जी, आपको इनवाइट करेंगे चाय पे, आप देखेंगे कि वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जीक्यूटिव सेंटर, जो मैंने हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, दुनिया की सारी चीज़ों को देख के उसको मैंने बनाया, इसको आपके इधर जे ब्लॉक में, ठीक है जी। आप आएंगे आपको मज़ा आएगा कि ये एग्जीक्यूटिव सेंटर होता क्या है, लोगों को नहीं पता। लर्निंग कोई ये नहीं कि अपना किसी रेस्टोरेंट में बैठ के या किसी अपना बैठ के लर्निंग हो जाएगी। लर्निंग के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है। जैसे आप रेस्टोरेंट अच्छा जाते हैं, वो इन्वायरमेंट मांगते हैं जी, खाना तो घर में भी खा रहे हैं लोग, सोशलाइजेशन करने के लिए जाते हैं लोग। वही जो एक बर्गर जो होता है या एक जो छोटी सी चीज़ खाने के लिए 1000 रुपये खर्च करते हैं, वो तो घर में भी 50 रुपये की बन जाती है। लेकिन वो इन्वायरमेंट है, वो एम्बियंस है, इसके लिए यू पीपल गो देयर, ठीक है। ट्रेनिंग भी इसी तरह लर्निंग इन्वायरमेंट है। लर्निंग क्या है, लर्निंग की डेफिनेशन क्या है जी, प्लीज़ बताइएगा। What is the meaning of learning? Learning stands for? दसो तुम वैसे ही ले लो यार, ले लो तुम इंज ना, तुम ये तो छड़ दो, बिन मांगे बोती मिले, मांगे मिले ना भीख। किसी वक्त तो मांगने पे भी नहीं मिलता कुछ, किसी वक्त तो बगैर मांगे भी मिल जाती है जिंदगी में चीज़ें कुछ। हाँ, एक्विजिशन, लर्निंग स्टैंड्स फॉर, हाँ जी वजाहत, हाँ जी बिलाल, जी महमूद, लर्निंग स्टैंड्स फॉर नॉलेज। गूगल तो देख रहे जी, है जी, उन्हें इंसाइक्लोपीडिया खोल दिया, एक्विजिशन ऑफ नॉलेज। ओके, लर्निंग का एक ही मतलब है, लर्निंग मीन चेंज। क्या बोला जी, इसका लेक्सिकल मीनिंग जो क्या है जी, चेंज। चेंज इन योर थिंकिंग, चेंज इन योर बिहेवियर, चेंज इन योर नॉलेज, चेंज इन योर स्किल्स इज कॉल्ड, प्लीज ये आज अपना जेहन में डाल के जाइएगा। लर्निंग स्टैंड्स फॉर, बच्चा जो ना अगर स्मोकिंग कर रहा है, चेंजिंग, उसने कुछ सीख लिया, किसी गलत महफिल में बैठता है आजकल, ठीक हो गया। चेंज आपके बिहेवियर में, जब भी कोई छोटी सी भी चेंज आए, आप बच्चे लैंग्वेज, बैड लैंग्वेज यूज करते हैं तो पता चलता है कि लगता है किसी गलत बच्चा ना बैठा है आजकल, ठीक हो गया। आप लोगों में, अच्छे लोगों में बैठे, आपके अंदर साइलेंटली बगैर अनकॉन्शियसली चेंज आनी शुरू हो जाती है। तो लर्निंग इज अ चेंज, क्या आप सीख रहे हैं। बाबा गुरु नानक कहते हैं, बाबा गुरु नानक गोल्डन टेम्पल में लिखा हुआ है कि सिख सिख के असी बन गए सिख, तो लोग की सानू हजे भी कैन सिख। चेंज जो होती है ना, ये सिर्फ सर जी सरदार नहीं सीखते, सिख जो हम पंजाबी में कहते हैं ना, सिख हो गया जी है, जिसकी सुई 12 पे फंस गई है। अदरवाइज हम गोद से गोद तक सीखते हैं, चेंज होते हैं कि नहीं होते जी। तो दिस इज द, ये 3 चीज़ों में मैंने कहा चेंज चाहिए आपको, मैंने लिखाए ये तीनों पॉइंट्स। स्किल सेट नीड चेंज, दूसरा क्या, वैल्यू सेट चेंज, माइंड सेट चेंज। अगर आपका एडमिन वाले बैठे हैं या आपके मैनेजर्स बैठे हैं सीनियर, तो प्लीज़ खुदा के लिए अपने घर में, अपने दफ्तर में ये तीनों चीज़ों के ऊपर एक ना मैट्रिक्स लगाएं, 1 से ये स्केल लगाएं
कि स्किल सेट में, वैल्यू सेट में और माइंड सेट में क्या क्या चेंज करना है और कितने लेवल पे जाना है, आहिस्ता आहिस्ता, स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद सेकेंड है अनलर्निंग। क्या बोला जी? अनलर्निंग स्टैंड्स फॉर एनीथिंग विच इज नेगेटिव, undesirable, which we learned in the early days of your life. When you get rid of that bad changes and install new changes is called unlearning. पुरानी बुरी चीज़ों को, जैसे पाकिस्तानियों का सबसे बड़ा अलमिया क्या है जी? टाइम मैनेजमेंट। क्या बोला जी? एज अ हैबिट, एज अ नेशन वी आर वेरी 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 क्या कहते हैं कि क्या कहते हैं कि इनडिसिप्लिन्ड अबाउट दिस हैबिट, है या नहीं? सरकार के दफ्तर में सबसे कीमती चीज़ आपको पता, जिंदगी का बल्कि सबसे कीमती रिसोर्स क्या है? वो टाइम। इसके ऊपर कोई है तो बता दें। खुदा खुद कहता है मैं वक्त हूँ, ज़माने को बुरा न कहो, वक्त को बुरा न कहो, मैं खुद वक्त हूँ। तो इतनी कीमती रिसोर्स है, दुनिया में पॉसिबल ही नहीं है। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम पे गया भी कोविड से, जब कुछ दिन पहले, अर्सा पहले, जब ये डेवोस में होता है, मैं हर साल जाता हूँ। यकीन जाने मैं वहाँ, जब वहाँ से फारिग होकर जब मैं आया ना ज़्यूरिख में, मेरे 2-3 दोस्त थे ज़्यूरिख में, स्विट्ज़रलैंड का जो कैपिटल है, वो मैंने उसे फ़ोन किया अपने दोस्त को व्हाट्सएप के ऊपर ना, जनाब मैं आपके शहर आया हूँ, आपके मुल्क आया हूँ, आप मेरे पुराने दोस्त हैं। फ़ोन अटेंड ही नहीं हुआ जी। हालांकि उसे पता था, मैंने ट्रैवल से पहले बताया था मैं आई विल बी इन ज़्यूरिख, मैं फ़लाँ डेट को उधर हूँगा, 2 दिन का स्टे है मेरा। मुझे क्या जवाब मिला? फ़ोन ही अटेंड हुआ। मैं बैठा रहा एक रेस्टोरेंट में, कॉफ़ी पी, कोई 2:30 बजे, तो वहाँ की जो टाइमिंग होती है, ब्रेक का टाइम होता है, कोई 1 बजे, वो फ़ोन आ गया उसका, इजाज़ सॉरी यार किधर हो? मैंने कहा फ़लाँ जगह, बस मैं आता हूँ, जाना नहीं उधर से। मैं कहा जलील मरे, मैं तेरे नहीं फ़ोन किए, तेने 8 फ़ोन अटेंड ही कोई नहीं किया। कहता बताता हूँ। हर थोड़ी देर बाद वो आ गया, करीब उसका ऑफिस था। मैंने कहा मैं इतनी दूर से आया हूँ, 7 समुंदर पहाड़ से, और तू मेरा फ़ोन अटेंड नहीं कर रहा। उसने बड़ी प्यारी बात की। हम पाकिस्तानी, टिपिकल पाकिस्तानी, बाहर जाके जाता ना बंदा वैसे, कोई आप दुबई चले जाए, किसी जगह चले जाए, आपके दिमाग में कई चीज़ें चेंज हो जाती हैं यार, सोच बदल जाती है, प्रोफेशनलिज्म समझ आता है क्या होता है। वो कहता है एजाज, मेरे ऑफिस टाइम के दौरान मैं अपनी पर्सनल कार रिसीव नहीं कर सकता, दिस इज अगेंस्ट एथिक्स। पुपी तो फोन आ जाए, पुपी तो पुत्र था, वो मेरे पुपी का पुत्र था फोन आया, वो बड़ी इंपॉर्टेंट गल करनी होगी। वो यकीन जानो, कहता जी मेरी ब्रेक का टाइम है, ये मेरा टाइम है। वो टाइम मेरा पेड टाइम था, उसमें डिसऑनेस्टी थी। अगर मैं तुमसे 10 मिनट बातें कर लेता था, क्योंकि 1 घंटे के हिसाब से मुझे पाउंड मिलते हैं, उनकी जो होती है पर आवर्स के हिसाब से उनको कॉम्पनसेशन होती है ना जी। वहाँ अगर 10 मिनट्स भी तुमसे बात करता हूँ, मैं 10 मिनट्स के लिए आई वाज लायबल। व्हाट अ ऑनेस्टी, व्हाट अ एथिक्स यार, इसको कहते हैं प्रोफेशनल एथिक्स। यार यू ओपन माई आईज यार, थैंक यू वेरी मच फॉर गाइडिंग मी। मेरा सबसे बड़ा आज का लेक्चर था कि अगर 10 मिनट में आपसे बात कर लूँ अपने पेड टाइम में से, तो सर बिलाल साहब बताएं ये हलाल होंगे, आराम होंगे मेरे लिए। तो उसने मैंने लिखा कोई इमरजेंसी है तो मुझे मैसेज कर सकते हो तुम। यकीन जाने कहता ये मेरा घंटा है, मेरा लंच भी ब्रेक है, इसमें आओ रोटी खाते हैं बैठ के यार, मेहमान हो तुम। फिर उसके बाद रात को फ्री हो गए, उसके बाद रात को कहीं डिनर पे निकलेंगे। सर दिस इज एथिक्स। कि वो अपने ऑफिशियल टाइम पे वो पर्सनल कॉल भी रिसीव नहीं करते अनटिल के कोई ऐसा मैसेज आ जाएगा इमरजेंसी वाला, आप लिख देंगे जी फलां को बहुत ही सीरियस हो गया, वो एक्सेप्शंस में आएगा। अदरवाइज रूटीन में कहता है जी हम अपने टाइम के ऊपर ऑफिस के दौरान के अपने पर्सनल कॉल्स रिसीव नहीं करते। ये हमारे ऑफिस का एथिक्स है, ये मेरा नहीं है, मेरे सारे कोलीग्स का है। कि ये नहीं कि मैं कोई बहुत अखलाकियात का बंदा हूँ, ये मेरा कल्चर है जो मुझे मेरे चेंज करता है मेरे बिहेवियर को। सर कल्चर इज मोर इंपॉर्टेंट इन एनी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये आ गया जी। अब क्या आ गया री लर्निंग। एक अल्लामा इकबाल का शेर है, आईने नौ से डरना और तर्ज कहन पे अड़ना, मंजिल यही कठिन है कौमों की ज़िंदगी में। पुरानी चीज़ों पे फंसे रहना चाहिए, हम उधर ही फंसे होते हैं पुराने ज़माने में। दुनिया कहाँ से कहाँ चली गई। आईने नौ से डरना और तर्ज कहन पे अड़ना, इकबाल ने कहा था 100 साल पहले। मंजिल यही कठिन है महमूद साहब पाकिस्तानियों की, जैसी नहीं बदलना, दुनिया सारी बदल जाए, हमने नहीं बदलना। आगे चलें जी। नेक्स्ट ये हो गया लर्निंग के ऊपर, जिस सबसे पहले एक्सीलेंस की है। आगे चलें जी 212। ये क्या होता है जी? एक्सीलेंस हासिल करने के लिए, वर्क प्लेस पे डिलीवरी करने के लिए, कस्टमर सर्विस को डिलीवर करने के लिए, सर ये सबसे बड़ा आपका आज का एक जो टिप है वो है 212। हाँ जी सर, योर गुड नेम? अबू बकर। अबू बकर प्लीज शेयर विद अस एनी, आपने साइंस पढ़ा है? साइंस ग्रेजुएशन किया होगा, इंजीनियर, माशाल्लाह। तो फिर तो आपका मेरा ख्याल, और ये 7th का है। वो एक शाहरुख का प्रोग्राम लगता था ना कि आप 6th ग्रेड से बेहतर हैं,
ठीक है, ये 7th ग्रेड से बेहतर हैं, आर यू बेटर दैन द 7th ग्रेड। ये सर ये 7th ग्रेड का क्वेश्चन है कि 7वीं सवाल का जवाब है जी। 7वीं में हमने पढ़ा था, याद है 212, याद होगा ना आपको। जैसे आपने ये पढ़ा था कि 100 सेंटीग्रेड पे पानी क्या होता है जी, बॉयल होता है जी, पढ़ा था ना स्कूल में, बिलाल पढ़ा था ना स्कूल में साइंस की किताब में। मैं भी साइंस ग्रेजुएट हूँ, मैं तो सिर्फ इसलिए पूछ रहा हूँ कि हम अपने पुराने लेसन भूल जाते हैं अनफॉर्चुनेटली। बैक टू बेसिक्स की तरफ मैं लेके आ रहा हूँ। ओ यस, आपने बोला, ओ बिलाल ने, देखो मैंने टिप दे दिया था 100 सेंटीग्रेड, तो सेंटीग्रेड को बिलाल के हैं नहीं आपकी है, नहीं आपके लिए, ये आप अपना, अच्छा जो इकट्ठी करेंगे ढेर सारी, उसको मैं एक बड़ा गिफ्ट दूंगा, पता है। आप ज़रा जवाब दें, ढेर सारे सवाल करें, मेरे पास काफ़ी हैं। जिसके पास सबसे ज़्यादा निकलेंगी ये रैपर देंगे, ठीक है, तो उसको मैं एक बड़ी स्पेशल एक अपना मैगजीन दूंगा, जो मेरा जिसके भी नाम लिया था इन्होंने, वो मेरा आई एम द चीफ एडिटर, मेरा मैगजीन है पाकिस्तान का सबसे, जिस फोर्ब्स नहीं कहते, ये पाकिस्तान फोर्ब्स का मैं चीफ एडिटर भी हूँ, तो वो मैं आपको एक गिफ्ट करके दूंगा सर, ठीक है जी। तो इसलिए समझ आ गई ना, तो आपको जिसके ज़्यादा रैपर होंगे उसके पास वो क्लेम करेगा एक फ्री कॉपी, ठीक है। डिजिटल मैं सबको फ्री दे दूंगा, अब हार्ड कॉपी मैं आपको वैसे ही दूंगा जी। हाँ जी बोलिएगा जी। 212 उन्होंने बताया जी फ़ारेनहाइट, ब्यूटीफुली सेड कि 100 सेंटीग्रेड पे पानी बॉयल होता है, तो अगर इसको कन्वर्ट कर दिया जाए फ़ारेनहाइट में अबू बकर, तो क्या होता है जी, वो पानी जो होता है वो फ़ारेनहाइट में बॉइलिंग होता है 11 में, और 212 पे स्टीम में कन्वर्ट होता है बेसिकली। ये साइंस है जी, लॉ है जी, ये कुदरत का कानून है जी। ये जैसे लॉ ऑफ ग्रेविटी है, मैंने तो नहीं बनाया ना जी, कुदरत ऊपर जी चीज़ फेंकेगी नीचे ही गिरेगी ना जी, लॉ ऑफ ग्रेविटी है। वैसे कोई मानता है लॉ ऑफ ग्रेविटी को कि नहीं, क्योंकि इनविजिबल है ना, शायद कोई ना माने। पाकिस्तान में अक्सर तो मैं ना मानने वाले हैं, पता है हमारा सॉफ्टवेयर है ना पड़ी हुई है, कोई काम करो नहीं हो सकता जी है। लड़की ने को पढ़ना हो, माँ जी मैंने पढ़ना, तू नहीं पढ़ना, क्या करना पड़ के, और काम ले जाओ किसी, सर है कि तुम हो नहीं सकता सर। लोगों की ना रोटी खाने यार, किसी को दावत दे दो घर में, कोई मेहमान, रोटी खाओगे नहीं जी। अब ज़बरदस्ती पाकिस्तान में ज़बरदस्ती हमारे मेहमान आते ज़बरदस्ती रोटी नहीं जी, रोटी खा के। अच्छा ना वाला भी ना मेरा वतन कह रहा होता है, अंदर से चाह रहा होता है जी, वो रोटी जाड़ी यार बस है ना, जरा ना बेसिकली वो तरह उसने तरह अपनी रखनी होती है, अपनी मैं रखनी होती है, इको रखनी कि यार है बहुत ही ज़्यादा तो नहीं, रोटी दावत दी है तो उसी वक्त एक्सेप्ट कर ली है, तो 3 दफ़ा ना बोल के मुस्बत हो जाती है ना, जमा ना इसी को मुस्बत। अच्छा जी क्या होता है जी कि 212 सर ये समझना है एक्सीलेंस की सबसे बड़ी। सर वैसे एक सवाल है आपसे मैंने कहा सवाल जवाब करते हैं सर। क्वेश्चन ये है कि व्हाट इज़ एक्सीलेंस, पहले ये मैं क्लियर कर दूं, फिर सर्विस आ जाएगी, फिर कस्टमर सर्विस, तो बात की बात है। एक्सीलेंस होती क्या है, ये कॉन्सेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए। व्हाट इज एक्सीलेंस? सो योर गुड नेम? बासित भाई, एक्सीलेंस किसे कहते हैं? अंग्रेजी में बोलें, उर्दू में बोलें, क्या होती है? एक्सीलेंस को डिफाइन कैसे करेंगे? राइट थिंग राइटफुली, ओके। और कोई दोस्त बोले जी? वजाय साहब जी। सर आपका नाम? सर खादिम सर। खादिम साहब हाल में आला तो नहीं ना? वो चले गए अल्लाह भाभी, हाय तो जो भी ओरिजिनेट में बैठते दवाएं बड़ी देते हैं उनको, लेकिन वो सबके फटे उन्होंने कहा जी हम लगाएंगे। सर एक्सीलेंस क्या होती है खादिम साहब? किसको करेंगे? क्वालिटीज। जी मैडम आपका नाम? तैयबा। आप प्लीज कैन यू शेयर द डेफिनेशन? अपने आप को इतना इम्प्रूव करना कि आपकी आउटपुट जो है वो मैक्सिमम हो जाए। गुड। आपका नाम? अरबा। आप कैन यू डिफाइन क्या? एबिलिटी टू डू बेटर। अच्छा जी, ज़रा एक्सीलेंस सुन लीजिएगा। एक्सीलेंस जो होती है कि जो अल्लाह ताला ने आपके अंदर जो पोटेंशियल रखा है, ठीक है जी, उसको मैक्सिमम आप उस पोटेंशियल को जो रियलाइज करते हैं, जिसको एक्चुअलाइजेशन कहते हैं ऑफ योर पोटेंशियल, इज कॉल्ड एक्सीलेंस। ये सादा सिलाब, ठीक है, जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट है फ्रॉम योर जो पोटेंशियल है, ठीक, जिसको हम काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल से हम काइनेटिक में ट्रांसफर करते हैं। अगर इसका सादा लफ्ज़ में बयान करूँ ताकि आपको समझ आ जाए, मेरे उस्ताद ने जो समझाई थी किताबी डेफिनेशन से हट के, वो तो गूगल से आप करेंगे बाजारों मिल जाएंगी। उन्होंने कहा था कि एक्सीलेंस इज एन एबिलिटी, एक कैसी एक आपकी सलाहियत है, एबिलिटी है एक्सीलेंस, ठीक है, टू कंप्लीट एन एक्शन, कंपल्शन टू कंप्लीट एबिलिटी टू, ठीक है, एंड कंपल्शन टू कंप्लीट एन एक्शन विच यू स्टार्टेड। कोई काम आपने शुरू किया, अगर आप उसको मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाते, यू आर नॉट एक्सीलेंट। 99% जो प्रोजेक्ट्स हैं, काम है,
बीच में सर क्या होता है जी, चले जी दाई हो जाता, बंदा ट्रांसफर हो गया, काम शुरू किया था रुक गया। एबिलिटी और कंपल्शन टू कंप्लीट एन एक्शन। बड़े लोग होते हैं जो ख्वाब देखते हैं, कितने लोग होते हैं जो उसकी ताबीर ढूंढते हैं, कितने लोग होते हैं बासा साहब जो उसकी ताबीर ढूंढते हैं। आपके पास लोग ख्वाब लेके आते हैं ना, कितने लोग होते हैं जो उसकी ताबीर ढूंढते हैं। सर अपनी उसको कंप्लीशन की तरफ ले जाना, किसी भी ख्वाब को, किसी भी काम को, किसी भी आइडिया को, चाहे वो जॉब के अंदर हो या पर्सनल लेवल पे हो। आपने पीएचडी की, कितने लोग पीएचडी मुकम्मल कर पाते हैं, बीच में छोड़ जाते हैं। कितने लोग होते हैं जी हमने ये करना ये करना ये करना वो करना वो करना, विश लिस्ट होती है ना जी, लेकिन बीच में ही रह जाते हैं। मैं एक सब्जेक्ट होता है कभी नेक्स्ट सेशन में ना आपके साथ करेंगे गोल सेटिंग के ऊपर, हाउ टू अचीव योर गोल्स। अभी वो 2021 है ना न्यू ईयर्स रेजोल्यूशन, मैंने काफ़ी सेशंस किए मुख्तलिफ कंपनीज के साथ, और मैं लोगों को बताता हूँ कि 2021 के बाद देखिएगा आपकी लाइफ में कितनी ट्रांसफॉर्मेशन आती अगर आप सर ये स्किल डेवलप कर लें कि हाउ टू अचीव योर गोल्स। कोई भी गोल देते हैं, आपने गाड़ी लेनी है, महमूद साहब आपके पास कौन सी गाड़ी है? कल्टस है, नहीं महमूद कल्टस है ना। अगर मैं कहूँ कि 2020 बाय एंड ऑफ 2021 या 2022, ठीक है, अगर मैं कहूँ वो चूड़ियों वाली 4 चूड़ियों वाली गाड़ी आप अल्लाह ताला आपको दे, 4 चूड़ियों वाली गाड़ी कौन सी होती है? हैं जी ऑडी। अच्छा चूड़ियों वाली आप क्या समझे थे? वो 4 अच्छा आपकी वो 4 शादियां सब वो मुसलमानों का तो वो हमारा तो एक सुई पसी हुई ना, ठीक है जी, हमने बाकी सुनते पूरी नहीं करनी इसके अलावा। तो वो एक ना एक मैं कहता हूँ कि यार हाउट वाला पार्ट, आपका गोल कोई भी हो, घर बनाना है, ठीक है जी, आपने आगे पीएचडी करनी है या एमबीए करना है। मुझे याद पड़ता है यार अली स्टिल रिमेंबर जब मैं फर्स्ट टाइम एक दफ़ा जब मुलाकात इमरान होते थे ना, डीएलडी के डायरेक्टर होते थे आपके किसी ज़माने में, याद होगा जो किसी ने कोई 8 साल पुरानी बात है, 7 साल, अब्बासी साहब ना, इमरान भाई साहब, वो भी मेरे स्टूडेंट थे और मैं इधर जाता था एमपीडीटी पढ़ाने में, तो फिर 20 साल से पढ़ा रहा हूँ। तो वो मेरे से कई आपके शहजाद आपके सारे जितने भी आपके डायरेक्टर्स हैं एमपीडीटी में आते थे। मैं एमपीडीटी में 14-15 साल पढ़ाया मैंने, टीचिंग किए, वहाँ पढ़ाता रहा हूँ सारे 17वां 18वां 19वां, फिर 19 के बाद जो आपका नेशनल स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी में आ जाते थे लोग ना, वो ऑफिस ग्रेड 20 के लिए जो आता है नहीं मिड करियर के बाद एक सीनियर मैनेजमेंट कोर्स होता है, ठीक है जी, एसएमसी बोलते हैं ना उसे, तो उसमें भी मैं जाता तो वो फिर आते हैं। तो वो इमरान साहब आते तो मैं याद है मैं जिनको मैं मोटिवेट किया करता था यार एमबीए कर लो, एंड ही डिड हिज एमबीए यार फॉर माई बीए, ऐसे ही ना जी, रियली प्राइड कि यार तुम लोग यार तुमने इतनी जॉब के भी कर रहे हो, जाकर 2-2.5 साल लगाए, इसने मेहनत की माशाल्लाह एक अपनी, मैंने कहा इंजीनियरिंग के साथ एक एमबीए का कॉम्बिनेशन बड़ा लीथल होता है, बड़ा अच्छा आपको कल को एडमिनिस्ट्रेशन का जॉब मिल जाता है या कहीं बाहर चले जाते हो तो ये आपका जो इंजीनियरिंग प्लस एमबीए बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया होगा। और आईबीए की डिग्री कैसी है कि आपको हर दुनिया में आपको वो ना वो बठिंडा वाली डिग्री नहीं है कि आपको काम नहीं आएगी, काम आएगी आपको ज़िंदगी में कहीं ना कहीं ये काम ज़रूर आएगी, क्योंकि आपने 2.5 साल लगाए इसकी मेहनत की है, ऐसे नहीं वो दे देते आईबीए वाले ना एमबीए ना। तो वही दिस इज़ द वर्किंग, मेरा काम होता है मैं इंस्पायर करता हूँ, मोटिवेट करता हूँ, यार आपने ये किया तो ये करो, ये वाला क्या नेक्स्ट लेवल ये है। अब एमबीए जैसे मैंने बोला ओल्ड मॉडल है, अब ये नई चीज़ें हैं। अब मैं कहता हूँ लोगों को कहता हूँ ये कॉम्पिटेंस डेवलप करो, और ये 3-4 क्रिटिकल कॉम्पिटेंसेज हैं, ठीक है। जैसे मैं आजकल लोगों को ना बच्चों को खास कर मैं बाकायदा तौर पे मोटिवेट कर रहा हूँ कि यार अगर तुमने बेरोज़गारी में निकलना है ना बाहर से या अपना काम करना है, बल्कि आपके लिए भी ये चीज़ सबके लिए कि अगर आपने सर जी ये 2 स्किल्स डेवलप कर लिए ना, आपको ज़िंदगी के अंदर ना आप कभी किसी भी दुनिया में मुल्क में चले जाएंगे ना आपको आसानी होगी, एडजस्टमेंट होगी। सबसे पहला जो स्किल है जो आपके पास मॉडरेट लेवल पे, इसको हाई लेवल पे ले जाएं, वो क्या आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, लैंग्वेज स्किल्स जो है ना, और राइटिंग स्किल्स और खासकर स्पीकिंग स्किल्स अंग्रेजी के, खुदा की कसम आपको दुनिया की ये लैंग्वेज के तौर पर नहीं कि नॉट कि आपने कोई पीएचडी अमीर हो जाएंगे, लेकिन आपको स्किल बड़ा काम है। इंडियंस बाहर जाते हैं ना मिडल ईस्ट में या बाहर जाते हैं, उनके ये बैरियर्स खत्म हो चुके होते हैं, वो डेवलप करके जाते हैं ये स्किल। सेकंड है अगर आपने मिडल ईस्ट में लॉन्च होना है तो फिर आपको अरबी आनी चाहिए, 6 महीने के अंदर आपकी फ्लुएंसी आ जाती है। टर्की में जाना है तो टर्की सीख के जाएं, और अगर आपने जर्मन में जाना है तो जर्मनी सीख के जाएं, 6 महीने सिर्फ कर जाएं 5 महीने का। फ्रांस में जाना उस एरिया में तो फ्रेंच करके जाएं, स्पेन में जाना है तो स्पेनिश करके जाएं। ये 5 और दुनिया की लैंग्वेजेस हैं जी, तो दुनिया में रूल करती हैं, ऐसी है ना जी। अगर आपको ये अगर चाइना नया मॉडल आ गया तो चाइनीज़ में कोई मैंड्रीन तो थोड़ा सा डेवलप कर जाए अपना बेसिक लेवल, हाई लेवल नहीं। आपको उसके बाद सेकंड स्किल जो है ना लैंग्वेज के बाद वो है कल्चरल स्किल्स। क्या बोला जी यार, आपको उस कल्चर का थोड़ी सी अगर समझ आ जाती है ना, जर्मन क्या वो कौम ही डिफरेंट है आम यूरोप से ना, अगर जर्मनी किसी का इत्तेफाक हुआ जाने का। अगर आप यूएसए जाते हैं वो बिल्कुल डिफरेंट है,
ठीक है जी, आप ऑस्ट्रेलियन है, उनके नेचर डिफरेंट है, चाइनीज़ बिल्कुल ही उनकी माइंडसेट ही डिफरेंट है, और मिडल ईस्ट के लोग बिल्कुल ही डिफरेंट है। ये 5 कल्चर्स हैं जी दुनिया के डोमिनेंट कल्चर्स आजकल। उसमें जिस कल्चर में भी आपने अगले 5 साल का विजन बना के जाना है, या आपका भाई ने जाना है, या आपने किसी और को गाइड करना है, तो ये 2 स्किल्स हर चीज़ यकीन जाने। और तीसरा जो वो टेकन फॉर ग्रांटेड ले रहा हूँ वो है IT स्किल्स, टेक्नोलॉजी स्किल्स। आपकी उंगलियों पे हर चीज़ हो, आपको छोटे मोटे काम चीज़ें पता होनी चाहिए, यार ये कैसी चीज़ें, ये ईमेल से अगला लेवल है ये, ठीक है जी। ये आपको अपने मोबाइल एप्लीकेशंस का पता होना चाहिए, कैसे रन करती हैं, क्या चीज़ है, सिस्टम क्या होता है, टेक्नोलॉजी कैसे वर्क करती है। आप कभी कल को आप एंटरप्रेन्योर बन जाते हैं, आप अपना बिजनेस करते हैं, आपको ये काम आएगा वहाँ। तो ये 3 स्किल्स ऐसे हैं, टेक्नोलॉजी का, कल्चर का और लैंग्वेज का। मैं कहता हूँ MBA एब्सोल्यूट, BBA सिर्फ बेसिक लेवल के, ताकि आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में एंटर हो जाए लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से, अदरवाइज ऑब्सोलीट। कोविड ने तो बहुत चीज़ों को ऑब्सोलीट कर दिया ना यार, रिडंडेंट कर दिया ना, रिडंडेंसी लेवल बहुत हाई हो गया। और अगर आपने MBA कर लिया या BBA कर लिया या PhD कर लिया, MPhil कर लिया, उसकी लाइफ की स्पैन कितना है, मार्केट वैल्यू सिर्फ 1 ईयर। इसके बाद वो पूछेगा भी कोई नहीं आपको, आप पुराने हो चुके होंगे, पीछे से जो नई फौज आ रही है आप पुराने हो चुके हैं। तो इसलिए ना जॉब सिक्योरिटी ना अब वो सरकारी नौकरी में नहीं है, जॉब सिक्योरिटी आपके स्किल्स में है। आई रिपीट, जॉब सिक्योरिटी किस में जी? नॉट इन द जॉब, इनहांस योर कॉम्पिटेंस। एक ऐसा स्किल मैं आपको बता देता हूं जो जिंदगी भर यार आपको काम आएगा, ट्रस्ट में। ये किंग ऑफ द स्किल्स है। कि जो मैंने रोजगार के स्किल बताया ना अभी तक, कि रोटी रोजी निकाल देगा इन मसलों से। आपको पता कोविड में कितने लोग बेरोजगार हो गए? स्किल्ड बंदा कोई बेरोजगार नहीं हुआ, स्किल वाले बंदे को कोई बेरोजगारी नहीं आई। जो ऐसे नौकरियां कर रहे थे ना, जिनका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल था, वो वेले फिर रहे हैं। इवन के जो बिजली वाला इलेक्ट्रिशियन है, बेरोजगार हुआ नहीं हुआ। अभी गर्मी आनी है, मौसम देखो, ये खासकर गर्मियों में AC वाले बेरोजगार हुए, AC ठीक करने वाला नहीं हुआ, कारपेंटर हुआ नहीं हुआ। घर बनाने के लिए हर बंदा कारपेंटर ढूंढ रहा है आजकल, मेरी अलमारियां बना दो। ये जो बार्बर शॉप पे जाएं, वो बार्बर वेले हो गए थे, दुकानें बंद हो गई थी, नहीं हुई, वो घर आके काम कर रहे थे। इवन ड्यूरिंग द फुल कोविड चल रहा था, तो वो मुझे एक दिन फोन आया मेरे, जो मैं जहाँ से ये कटिंग कराता हूँ, सर अस्सलाम वालेकुम। वो सब डरे हुए थे, सर आप बुरा ना मानिएगा, मैं आपको पता है आप मेरे पास आते, मैं क्या हुआ, अच्छा तुम बहुत करो नंबर से, उसने मेरे किसी से नंबर लिया, सर वो दुकान तो बंद पड़ी है तो मैं अवेलेबल हूँ सर। अब 2-2 महीने लोगों ने बाल नहीं कटवाए, क्या हाल हो गया लोगों को, कोई ये भी नहीं करा रहा, कोई बाल ही नहीं कटा रहा। और मैंने कहा तू आ जा यार, घर आ जा। तो वो गरीब आदमी, मैं कहा चलो यार इसकी रोजगार है। वो घर आया, बकायदा उसने प्लास्टिक को पूरा पहने हुए कपड़े ये शॉप पर चढ़ाए हुए हाथों पे, और मुँह के ऊपर सारा बिल्कुल उधार भी उसने, नया ब्लेड, सर देख लें हर चीज़ सैनिटाइज करके लाया हुआ है। फिर भी डर लग रहा था यार, अच्छा चलो कोई नहीं यार। वो जहाँ जितने पैसे लेते उसे मैंने थोड़े उसको प्रीमियम प्राइस दे दी। ही वॉज हैप्पी, आई वॉज हैप्पी। तो कोई बेरोजगार हुआ? कोई नहीं हुआ। सर दीज आर द, ये है। और एक स्किल में एक आपको सिखा के जाता हूँ, ये बता के जाता हूँ, कम से कम अपने बच्चों को सिखा दें कि ज़िंदगी में वो रूल करेंगे। अगर कोई मुझसे पूछे ना मैं PhD जांच करूँ, कौन से सब्जेक्ट में करूँ, मैं उसको नहीं कहता तुम HR पढ़ो, तो मार्केटिंग पढ़ो, तो फाइनेंस पढ़ो। उसे कहता हूँ एक सब्जेक्ट में PhD कर लो, उसमें डिग्री की जरूरत नहीं है किसी ठप्पा लगवाने की, सिर्फ ये कॉम्पिटेंस लेवल हाई कर लो इसकी इसके ऊपर, इस ये PhD है तुम्हारी। कहते वो कौन सी? मैंने कहा जी अपने इंटरपर्सनल स्किल्स डेवलप कर लो, अपने नेटवर्किंग स्किल्स डेवलप करो। आपके सोशल मीडिया पे कितने बंदे लिंक्डइन यूज़ करते हैं? एक, कितने लोग हैं लिंक्डइन पे आपके साथ? मैं देखो लिटमस टेस्ट है ना ये। अगर आपको PR का या नेटवर्किंग का, प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ मैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम दूसरे की बात नहीं कर रहा, वो आपका पर्सनल होता है, जाती है अभी कोई पर्सनल फैमिली की फ़ोटो लगा दी। लिंक्डइन पे नहीं पर्सनल फैमिली की फ़ोटो लगती ना जी, या शादी ब्याह की फ़ोटो नहीं लगाते ना। वहाँ तो सिर्फ आपके C लेवल या कॉर्पोरेट लेवल या बिजनेस या टॉप लेवल के लोगों के साथ, इंटेलेक्चुअल लेवल के साथ इंटरेक्शन होता है, दुनिया के लोगों के साथ। लिंक्डइन इज फॉर नॉट फॉर पाकिस्तान ओनली। हाँ जी, कितने हैं अबू बकर आपके लिंक्स? आपके कितने हैं अबू बासर? 250 होंगे। ये जान सर के कितने होंगे? आइडिया दे दें, जस्ट रफ आइडिया। थाउजेंड्स, 5000, 10,000, कितने जी? 200, 400, 4,500। सर आई हैव 100,000 सर, 1 लाख बंदा जी, और ग्लोबल है। जैक मा भी मेरा पता है लिंक्डइन फ्रेंड है, नाम सुना है जैक मा का? अली बाबा। मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जाता हूँ, मैं सारे CEOs पकड़ के ना मोबाइल उनके बाद कनेक्ट कर देता हूँ वहाँ लिंक्डइन, क्योंकि वहाँ हर साल मैं जाता हूँ, और 4 रोज़ा मेला नहीं होता वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जिसे बोलते हैं, क्योंकि मुझे पता है इसकी पावर का।
अगर मैं दुनिया के किसी मुल्क में भी जाऊंगा अली, ये आज से अगर शुरू कर देना, अगले 6 महीने बाद आप दुआएं देंगे जहाज सर को कि जहाज साहब ने क्या बोला था। क्वालिटी के लोग अपने नेटवर्क में रखें, जो लाइफ विल बी चेंज्ड। हमारे उस्ताद ने बड़े साल पहले बात बता दी थी कि अगर आपके साथ 5 इंटेलेक्चुअल फ्रेंड है ना आपके, तो छठे आप हैं। अगर आपके 5 अमीर दोस्त हैं ना, तो छठे आप हैं, ठीक है जी। और अगर 5 बेवकूफ है ना, तो छठे। चेंज योर एसोसिएशंस, चेंज योर नेटवर्क, चेंज योर पीपल अराउंड यू इफ यू वांट टू चेंज योर लाइफ। ये इससे बड़ा कोई सीक्रेट नहीं है। मकसद लोगों को कहता हूँ, अभी मैंने बॉडी की बात की थी 4 चूड़ियों वाली, सही बंदे बड़े अपने दोस्तों के साथ बैठे जाके। यार देखिए एक बात याद रखिएगा, यकीन जानिएगा, देखो मैंने भी आपके साथ ही उधर बैठे, मैंने भी 17 साल नौकरी की है ना, अभी तो आपको 17 साल मेरा किसी कम ही हुए होंगे, इतनी तो मैंने जॉब कर ली थी यार सरकारी। तो वो मैंने भी जिंदगी थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी 25 हो गई, 30 माशाल्लाह। तो सर है थोड़े 30 का सर और वास्ते एक सर जी है थोड़े वास्ते सर, ठीक हो गया जी। और कुछ 30 से ऊपर 31, 32 ठीक है सर, ये तो 3 तो पूरे भी नहीं होने सर कहीं, ठीक है जी। गल बच्चे नहीं सर, बच्चे इस देहात के चलाक हो गए, यकीन जाने आज के बच्चे आपसे ज़्यादा जानते हैं, हमसे ज़्यादा जानते लिटरली, ठीक है। हमारे पास ठीक है तजर्बा है, लेकिन सर इन्फॉर्मेशन इनके पास ज़्यादा होती है, तो नई नस्ल के बच्चे। अच्छा सर जी, तो क्या बात कर रहा था सर जी, आगे चलते हैं। 212 के बाद क्या बोला जी मैंने, ये असल ह्यूमन पोटेंशियल को कन्वर्ट करने का नाम क्या है कि इंसान की जो सलाहियत अल्लाह ने दी है, अगर सर आप उसकी स्टीम पे ले जाएं, उसका थर्मोस्टेट चेंज कर दें। क्या बोला जी, थर्मोस्टेट है, टेम्परेचर आया कि 211 तक हर कुछ काम करता है। सर 212 पे अगर आप चले जाते हैं, यू विल बी अनस्टॉपेबल। ये ब्रेक द रूल्स एक किताब है, जैसे 7 हैबिट्स है, आपको कुछ चाहते जाते 2 दिन किताबें बता दूंगा, ज़्यादा नहीं, खुदा की कसम अगर वो किताबें पढ़ ली तो आपकी वैसी आधी ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगी। अगर नहीं पढ़ते तो मैंने जाते जाते अभी ब्रेक चाय के ऊपर मैं आपको एक मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करा देता हूँ अपने। सर 500 दुनिया की बेस्ट बुक्स हैं, ऑडियो में, वीडियो में और टेक्स्ट में, उसकी समरीज में, उसकी चैप्टर वाइज समरीज में, सर मुफ्त में सारी क्लिक करें। जब भी वेले बैठे हों, गाड़ी में बैठे हों, टूटी लगा लें, गाड़ी चला रहे हैं, रोज़ की एक नई किताब पढ़ लें सर। साल पूरा पढ़ते नहीं, रोज़ की एक, हफ्ते में एक पढ़ लें सर जी, आपकी लाइफ ना बदले, मुझे पकड़ लीजिएगा आप। 3 किताबें जो आज बता के जाता हूँ ना मैं, 7 हैबिट्स आ गई सर जी, एक हु मूव्ड माई चीज़, हु, और अगर आपने अमीर होना है तो फिर रिच डैड पुअर डैड। अगर ये किताब, ये अल्केमिस्ट, अगर आपने पर्सनल चेंज की बात करनी है, हु मूव्ड माई चीज़, हु मूव्ड माई चीज़। सर दुनिया की सबसे ये किताबें हैं, दुनिया की बेस्ट सेलर बुक्स हैं जिन्होंने दुनिया बदली है यार। 40-40 मिलियन बुक्स, ये बाइबल्स हैं ऑफ लीडरशिप डेवलपमेंट या सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर। रिच डैड पुअर डैड, आपको पता चलेगा कि यार ओटी कैसे आनी है सर जी। अब उस अगले 2 साल में ओटी आनी है, ये नहीं होता कि 2 नंबर। देखो ये सबसे बड़ा बात है, अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के अंदर ना इतना माइंड सेट है हमारा, अगर कोई बंदा अमीर हो जाए ना 99% ये दिमाग में आएगा यार कोई 2 नंबरी की थी इसने। हलाल तरीके से अमीर होना गुनाह है इस मुल्क में है, इसलिए ना एक परसेप्शन बन जाता है। हम क्या करते हैं, जंप टू द कंक्लूजन। जिंदगी के 3 SOPs याद रखने, आज जब जाना अपने बाहर शीशे के, इजाज निसार की ये एक्सीलेंस का जो टॉक है, और लिख रहे हैं और कागज़ पे लिख के तवीज़ की तरह पढ़ने, सुबह दोपहर शाम, चाय के साथ, पानी के साथ, दूध के साथ। बस वही तो कह रहा हूँ ना मैं, अगर कोई सचमुच में वीर हो जाए, उसको भी कहते हैं भाई ये 2 नंबर रिपोर्टर का काम शुरू कर लिया, या इन्होंने अंदर खाने लगता कोई प्लाटां के नाल इन्हों के किसी डीलर के नाल एसोसीएशन हो गया। आज के ज़माने में हर चीज़ पकड़ी जाती है, डर लगता है आप किसी पैसे पकड़े तरह, आपकी दूर से भी वीडियो बन गई तो आपको करियर तबाह हो गया, 1 सेकंड लगता ना जी। पूरी जिंदगी के 10 साल 15 साल में एक छोटी सी मौलवी साहब कल से अपनी जस्टिफिकेशन दे रहे हैं जी, चपेड़ मारी कि नहीं सी उन्हें मारी सी, उन्हें मारी, बड़ा हेल यार हैं बस साहब मैं नहीं सी वो कड़ का वक्त बड़ा भाई जी है जी आदम साहब चपेड़ की बेचारा मौलवी यार, कसम से इतना प्यारा हमारा ये इंस्टीट्यूशन है, मौलवी बहुत प्यारे, हमने बचपन में कुरान पाक पढ़ा उनसे, मस्जिद में नमाज पढ़ते हैं, लेकिन उसको यार कितनी डिफेम करते हैं ना यार। अनफॉर्चुनेटली मीडिया तो इन चीज़ों को पकड़ता है ताकि उनकी हाइप क्रिएट हो और उनकी रेटिंग बढ़े, अनफॉर्चुनेटली है जी। तो क्या आगे चलते हैं जी, आगे फार्मूला शेयर करता हूँ, चलें जी एक्सीलेंस का आगे चलें। आई पीपल आई हैव चीज, ये फार्मूला है जी एक्सीलेंस का। व्हाट डज दैट मीन, IP का मतलब क्या होता है जी, इनबॉर्न पोटेंशियल प्लस फ्यूचर ग्रोथ इज इक्वल टू डेवलपमेंट। नेक्स्ट
नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। हाँ जी, ये एक चीज़ आपने याद रखनी है, ये किताबें मैंने बता दी आपको ना 3, 7 हैबिट्स, हु मूव्ड माई चीज, रिच डैड पुअर डैड। ठीक हो गया जी, ये 3 किताबें सर जी आपने याद रखनी है। अली ये मैं सबके सामने कह रहा हूँ, अल्लाह को आसान नजर जान के, कि अल्लाह ने 2 सवाल पूछने हैं मरने के बाद। पहला कि नमाज पढ़ी थी कि नहीं पढ़ी थी, पहला सवाल अल्लाह में ये पूछना है ना। दूसरा सवाल अल्लाह में ये पूछना है कि जानसार ने 3 किताबें बताई थी, पढ़ी थी कि अब मुझे अब जा दिए ना, मैं वहाँ ये गवाही दूंगा, मैंने जी आपको अल्लाह जी उनको बताया, क्योंकि ये बाइबल हैं। अभी तक नहीं आई नहीं यार, ये तुम तो इतना यार इतने प्यार से बोले, ये तो वैसे ही ले लो यार। अच्छा, वजाहत मजे की बात बताऊं, वक्त के साथ साथ ना, ग्रेडों के साथ साथ, वक्त के साथ साथ कैंडीज भी बदलती रहती हैं। क्या बोला मैंने? तो समझ आ गई, कैंडीज बदलती रहती हैं किस वक्त ना, ठीक है ना। देखो जी लोग ना, मैं कहता हूँ यार ले लो यार, मैं तो देने गया हूँ, अब तरीका क्या है। देखो लोग समझते हैं कि आप सवाल करें, आप कोई भी बात करें आपको कैंडीज मिलेगी, बात करें आपको चीज़, आपको कोई कंट्रीब्यूट करता है ना कोई बंदा, तो वो कैंडीज होती है ना। और ये अप्रिसिएशन है बेसिकली। हमारे पाकिस्तान में हमने क्या किया हुआ, PhD किया हुआ क्रिटिसिज्म में, बैक बाइटिंग में, कंप्लेन्स में, PhD है पाकिस्तानी सारे। तो वही तो कह रहा हूँ सर, जो आज का सेशन है ये इसी के लिए है कि एक क्राउड है, आप क्राउड से बाहर आ जाएं, स्टैंड आउट करें तो आप आउटस्टैंडिंग हो जाएंगे। आप उस क्राउड का हिस्सा ना बने, आपको लोग पागल कहेंगे। पागल का मतलब सुन लीजिएगा सर, पागल का मतलब क्या होता है सर। मैं बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी बात कर रहा हूँ, मैं भी 25 साल साइकोलॉजी पता है ना, मेरा उड़ना छोड़ना रहा है। तो पागल की डेफिनेशन ही आज तक डिस्कवर हुई सर, पता है आपको। हर बंदा पागल होता है सर, हर लम्हे में। यार एक ऐसा नॉर्मल बिहेवियर जो होता है, जैसे गुस्सा होता है, हर बंदा पागल नहीं होता, गाली निकाल रहा होता है, हर बंदा पागल नहीं होता उस वक्त। रैशनैलिटी के साथ कोई बात कर सकता है तो वो तो होता है। तो पागल जो होता है ना, सुनिए कि जो पागल खाने में होता है सर, आपके इर्द गिर्द मिलेंगे आपको, नहीं समझे सर जी। तो वो क्या होता है कि पे अलिफ पा गाफलम गल, असल पागल की मैं तरफ आ रहा हूँ। गल को पीछे ले जाएं, पे को आगे ले जाएं। जो गल को पा गया, जो अंदर की बात समझ गया, वही पागल है। क्या बोला जी महबूब साहब? जो असली बात पागल, जो गल को जो पा गया, जो समझ गया जिंदगी के सीक्रेट्स को, जो वास्तव अली वास्तव के पास बैठ गया, या वास्तव साहब के साथ टाइम गुजार दिया, इससे मेंटोर्स थे वो। अनफॉर्चुनेटली मेंटोर्स का कहत है, वैसे ही कहतू रिजाल है। अबू बकर मरदम शुमारी करोगे तो 22 करोड़ मिलेंगे, मरदम शनासी करोगे 22 भी नहीं मिलेंगे। ये कहतू रिजाल है, ये फेज ऐसा है हिस्ट्री का। मुख्तार मसूद की किताब पढ़ें, बस अगले 5-7 मिनट में रैप अप करते हैं, ये बंद हो गया। चलो ये मैं आपको छोटी सी एक चीज़ बता दूँ जो मैंने क्लोज करना था। एक फार्मूला था एक्सीलेंस का, कि वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जो एक्सीलेंस को डिस्कवर करती है या अनफोल्ड करती है, वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड है। क्या बोला जी? जब सारी जो बातें कर रहे होते हैं सुबह दोपहर शाम, पाकिस्तान के हर वर्क प्लेस के ऊपर आपको सबसे ज़्यादा जो लड़ाई करनी पड़ती है वो आपको नेगेटिव एटीट्यूड्स के साथ है, नेगेटिव माइंडसेट्स के साथ है। सारी जंग नेगेटिव एटीट्यूड्स के साथ है। सेकंड जो जंग लड़नी पड़ती है आपको सर, जो कमिटमेंट जो होती है ना, जो एक्सीलेंस की सबसे बड़ी रिकवर होती है, वो होती है डिसऑनरिंग योर कमिटमेंट्स। क्या बोला जी? आपकी कमिटमेंट जो डिलीवर कर देता है, जान लोग दे देते हैं। जापान में लोग इसलिए खुदकशी नहीं करते कि लोगों को भूख है, गरीब हैं, माँ जहर का टीका लगा देती है बच्चों को, कुएं में छलांग लगा देती है 3 बच्चों के साथ। वो ऐसे नहीं होती पाकिस्तान में जैसे गरीब गुर्बत से लोग मरते हैं। वहाँ इसलिए मरते हैं क्योंकि लोगों ने कमिटमेंट की, औंधा नहीं किया, लोग खुदकशी कर लेते हैं। वो शेमिंग इतनी खौफनाक चीज़ है कि वो दे आर अनएबल टू फेस द पर्सन। ठीक है सर, हमारा दीन क्या है, सारा है दीन की सारी फिलॉसफी कमिटमेंट के ऊपर है। जान दे देते थे लोग, वादा करो तो पूरा करो। झूठे के अंदर क्या होता है जी? मुनाफा की क्या 4 निशानियां बयान की थी? झूठा जो बात करे तो ये एक्सीलेंस है सर, ये एक्सीलेंस है, इसके अंदर छुपी भी डेफिनेशन है। बात करे तो झूठ बोले। दूसरा क्या था जी? वादा करे तो पूरा करे। चाहे वो आप इसको कस्टमर सर्विस में अप्लाई कर दें, LDA एज अ डिप्टी डायरेक्टर, एज अ डायरेक्टर के तौर पर बात कर लें आप कि यार मैंने वादा किया, इसको लिख कर दिया, उस डेट पे काम नहीं हुआ, तो आई एम गिल्टी यार। हमारे मुल्क के अंदर सबसे बड़ा कहत पता क्या है? लैक ऑफ ऑनरशिप। हम जिस पाकिस्तान की ऑनरशिप नहीं लेते, अदारे की तो बाहर की बात है सर। ठीक है, मैं तो थोड़ा सा, क्योंकि जब मैं अपना इम्तिहान दिया था तो मैंने हिस्ट्री पढ़ा था, हिस्ट्री मेरा सब्जेक्ट था, मैं हिस्ट्री थोड़ा बारीक से पढ़ रहा, शायद शौक से पढ़ी हिस्ट्री इस मुल्क की, कि इस मुल्क की बुनियादों में कितना लहू है यार,
कितना कर्ज है उस लहू का, नई नस्लों को तो पता भी नहीं कि आज पाकिस्तान को बुरा भला कर रहे हैं। पाकिस्तान को अगर आप जरा ऊपर स्ट्रेटेजिक लेवल पर देखें तो पाकिस्तान अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। ये कैसा जगह है कि चीन भी पीछे पड़ा हुआ, इंडिया भी पीछे पड़ा हुआ, पता नहीं इसराइल भी, पूरी दुनिया जहान पीछे से नजर से कोई सी पैक रोकने के लिए पड़े हैं, कोई इंडिया पीछे, वो पता यार यकीन जानिएगा। इसलिए नहीं कि मुझे कोई फौज हमदर्दी है, मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि अगर फौज ना हो तो मुल्क भी ना हो। उनकी गलतियाँ हैं, बहुत गलतियाँ, मैं उनको कहता हूँ, उनके मुंह पे कहता हूँ, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम से जाके कहता हूँ कि सर जी आप ही ने मार्शल लगा के सत्यानाश किया था। वो मानते भी हैं इस बात को, नीचे वाले लेवल पर सारे मानते हैं, डिसएग्री कोई नहीं करता। आइन किसने ब्रेक किया? मैंने किया, आपने किया। मैंने कहा जी बुरा ना मानिएगा सर, बिहेवियर्स ऊपर से डाउन होते हैं, ऊपर से नीचे से ऊपर सफाई नहीं होती, ऊपर से नीचे सफाई होती है। क्या बोला जी? क्या कहते हैं जी कि नीचे ऊपर वाले आइन तोड़ते हैं, नीचे वाले इशारा तोड़ते हैं। ऊपर वाले आइन में मिलावट करते हैं, नीचे वाले आटे में मिलावट करते हैं। सफाई करनी हो ना, लेडीज बैठी हैं, सफाई घर की सीढ़ियाँ साफ करते हैं तो नीचे से ऊपर सफाई होती है, ऊपर से नीचे होती है। कभी कार ने घर में किसी सफाई की है? तो सर चेंज मैनेजमेंट या ट्रिकल डाउन ऊपर से नीचे होती है, नीचे से ऊपर नहीं होती। एक आपका डिपार्टमेंट हेड अगर टाइम पे आता है ना तो पूरा दफ्तर को लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, कल्चर सेट हो जाएगा। जी बॉस सुबह 8 बजे तक बैठे होते हैं दफ्तर के अंदर, तो बॉस आएंगे 12 बजे तक। सर कौन आएगा टाइम पे? जी बताएं जरा मुझे। ये वॉक द टॉक है सारी जो एक्सीलेंस है सर, वॉक द टॉक जो आप बोल रहे हैं, लीड बाय एग्जांपल है ये, नथिंग एल्स। तो आखिरी बात मैं यही बात को कर रहा था कि ये क्या है जी, एटीट्यूडल हमारे प्रॉब्लम्स हैं। एक फार्मूला था वो लाइट की वजह से खत्म हो गया। क्लोजिंग मेरा जुमला था कि 4 चीज़ें हैं जी एक्सीलेंस का जो मजमू है, ठीक है। आखिरी मैं बातें अब क्लोज करूँगा आज के सेशन को। ये एक कंपोजिट है, एक फार्मूला है, 4 चीज़ों का एक मुरक्कब है, ठीक है, कंपाउंड है ये। फर्स्ट क्या है जी, सबसे इंपॉर्टेंट एक्सीलेंस के अंदर जो इंपॉर्टेंट नंबर 1 चीज़ आती है ना, वो हैबिट्स हैं। क्या बोला जी? अगर आपके अंदर हैबिट्स ही ना हो सक्सेसफुल लोगों की, अच्छे लोगों की, आप क्या अब किताबें पढ़ के PhDयाँ करके कुछ कर लेंगे? पूरा ना मानिएगा, मैं जितने दुनिया के 1000 एंटरप्रेन्योर्स की रिसर्च की है, 1000 एंटरप्रेन्योर्स मैंने स्टडी किए हैं, सर सब के अंदर एक कॉमन फैक्टर था सक्सेस का, एक्सीलेंस का। क्या जी? कि वो अर्ली राइजर थे। क्या बोला? यस, कॉमन फैक्टर था। मैं आप लोगों की या मीडियोकर्स की बात नहीं कर रहा, मैसेज की बात नहीं कर रहा, मैं उन 1000 लोगों की बात कर रहा हूँ, बिल गेट्स, स्टीव जॉब्स और जितने भी मैंने रिसर्च की है, इनकी लाइफ स्टडीज़ की हैं, बायोग्राफी स्टडी की है इनकी, ठीक है जी। क्या कॉमन फैक्टर था इनका? यस, ये हैबिट है, ये नॉलेज नहीं है। आपके अब्बा जी सुबह उठाते थे भिंडी लगा के, हमें उठाते थे तो हमें आदत पड़ गई। आज के बच्चे उठते हैं कोई, लेकिन अब्बा जी चले गए, लेकिन आदत रह गई। कोई चाहे नमाज पढ़ने की आदत हो, सच बोलने की आदत हो, ये हैबिट्स हैं। आप लेक्चर दे के अली अपने स्टाफ को ठीक कर सकते हो? ये हैबिट्स है। उसने रोज पपी पुपी मारनी है, रोज मोटरसाइकिल पंचर करनी है, शकीन यानी रोज एडमन में है ना, रोज बंदे झूठ बोलते हैं, बीमारी है हमारी सबसे बड़ी झूठ। तो क्या जी, पहली क्या जी, हैबिट्स, चेंज इन हैबिट्स। ये हैबिट्स पॉजिटिव लाएं, ये लगाएं। मैंने एक वो आपकी एक्सरसाइज करनी थी, लाइट की वजह से बंद हो गई, क्लोजिंग पे एक्सरसाइज है। हैबिट्स में क्या क्या चेंज करना है 2021 में आपने? एक हैबिट मैंने बता दी, इंटरपर्सनल स्किल्स हैबिट डेवलप करें, लोगों से मिलना सीखें, बात करना सीखें। अपने जैसे लोगों की बात कर रहा हूं, अपने से बेहतर लोगों की बात कर रहा हूं, ठीक। उसके बाद हैबिट्स के अंदर लिखें। कहते हैं कि हैबिट्स होती है ना, इसको साइकोलॉजी में हम कहते हैं कंडीशनिंग, और कंडीशनिंग हमारी डेस्टिनी होती है। क्या बोला जी? हमारा सॉफ्टवेयर है, हमारी डेस्टिनी है, हमारी किस्मत बनाती है, ये हमारी आदतें। पहले हम आते बनाते हैं, बाद में आते हमें बनाती हैं। पता है आपको? जिसकी मेहनत की आदत हो, पाकिस्तानियों की मेहनत की आदत ही नहीं है। हर बंदा चोर दरवाजा ढूंढता है, हर बंदा शॉर्टकट ढूंढता है, रातों रात अमीर होना चाहता है। वही बीमारी होगी ना जी, रातों रात अमीर हो जाए। 4 बंदों को दाएं में देखा, जैसे आप बोल रहे थे कि एग्जाम्पल बन जाती है, फिर उसका कहता है ये एग्जाम्पल बैड है। औरत का क्या हाल कर दिया आपको पता है? औरत को एक उन्होंने कमोडिटी बना दिया, तो फिर क्या हो जाएगा? माँ का रिश्ता, बहन का रिश्ता, भाई का रिश्ता, रिश्ते सारे खत्म हो जाते हैं ना फिर। तो फिर एक नारकी रह जाती है, एक जंगल ही रह जाता है फिर तो, जहाँ कोई रिश्ता नहीं, कोई कुछ नहीं। हैबिट। उसके बाद आ जाता है जी सेकंड चीज हो जाती है वो नॉलेज, ठीक है इसको, ठीक है जी, नॉलेज। नॉलेज, यू आर नॉलेज वर्कर्स, यू आर नॉट डिप्टी डायरेक्टर। बुरा ना मानिए, मेरे सामने आप डायरेक्टर डिप्टी डायरेक्टर नहीं है, यू आर नॉलेज वर्कर्स। आपके पास नॉलेज क्या है? आप इंजीनियरिंग है, आपके पास फलां का नॉलेज है, किस चीज़ का नॉलेज है? एक अर्धे एरिया में स्पेशलाइजेशन करें, ट्रेड जैक ऑफ ऑल ट्रेड ना बने मास्टर, ठीक है, नथिंग। तो तीसरी चीज़ आ जाती है एस, स्किल्स। आपने कॉम्पिटेंसी डेवलप करनी है सर एक्सीलेंस के लिए, ठीक है। के उसके बाद आखिर में रह जाता है ए, वो आ जाता है एटीट्यूड।
तो इसको अगर इकट्ठा करें तो ये सर अगर मैं इसको तरतीब लगाऊं इसकी ऑर्डर में तो KASH आता है। इसको कहते हैं काश। क्या बोलते हैं जी? KA, ये आपको याद रह जाएगा, ये एक्सीलेंस का फार्मूला है जी। जब आप जाएंगे आपको सारी गुफ्तगू भूल जाएगी, लेकिन आपको ये ना जी ये काश नहीं भूलेगा। और मौलाना रूम फरमाते हैं, जाय साहब मौलाना रूम की मसनवी में मौलाना रूम फरमाते हैं कि जो नलायक लोग होते हैं ना वो इफ़ एंड बट पे ज़िंदगी गुजारते हैं, अगर और मगर। ठीक है, मौलाना रूम फरमाते हैं बादशाह साहब कि अगर और मगर की शादी कर दी जाए तो काश पैदा होता है। क्या जी? अगर और मगर की शादी की जाए तो क्या होता है जी? नलायक लोग क्या कहते हैं, काश ये कर लेते, काश सही नौकरी कर लेते, CSS कर लेते, फलां कर लेते, उधर व्याह कर लेते, घर उधर ले लेते। अक्सर आपके पास आते होंगे, प्लाट यार इधर होता तो आज मैं भी करोड़पति होता, मेरे सामने बिक रहा था, मैंने लिया नहीं सर जी यार मेरे से टाइम गुजर गया जी, काश ये हो जाता जो। तो वो ज़िंदगी जो नलायक लोगों की ना ज़िंदगी काश रिग्रेट्स के साथ गुजरती। एक किताब का नाम भी है रिग्रेट्स, वो पढ़ने वाली है। तो क्या है जी? के फील्ड फोल्ड क्या है जी? नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल, H फॉर हैबिट्स। इन सब को इकट्ठा करें सही तरतीब के साथ, सही नंबरों के साथ। जैसे हम बैग खोलते हैं, टैची केस खोलते हैं, ठीक है, ब्रीफ केस खोलते हैं, तो 666 से 4 डिजिट होते हैं ना जी। क्या करते हैं 6 6 6 6, तो क्या होता है खुल जाता है ना जी। तो ज़िंदगी का जो सीक्रेट है, जो लॉक है, वो भी ऐसे ही खुलता है KASH से। सही नॉलेज, सही एटीट्यूड, 6 6 अगर 7 कर देंगे तो एक भी खराब हो गया तो डिजिट, तो वो बैग नहीं खुलेगा, तोड़ देंगे, आग लगा देंगे उसको, लेकिन खुलेगा नहीं। तो ज़िंदगी की जो एक्सीलेंस है, जो साइंस ऑफ सीक्रेट ऑफ एक्सीलेंस है, चाहे वो कस्टमर सर्विस हो, चाहे कोई भी डिलीवरी हो, चाहे पब्लिक सेक्टर हो, प्राइवेट हो, पर्सनल हो, घर हो, सर सही नॉलेज। जैसे HR में बोलते हैं सही बंदा सही जगह पे लगाएं, दिस इज HR। और क्या जी? कुछ भी नहीं इसके अलावा। तो इसी तरह नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड अगर सही तरतीब रख देंगे तो ये काश से क्या हो जाएगा? कैश। क्या बोला जी? तो महमूद तुम्हारी OD आ जाएगी फिर, ठीक है जी, 4 चूड़ियों वाली आ जाएगी। ठीक है, फिर देखना लोग तुम्हें कागल कहेंगे यार है 10 अंदर खाने की किता तुम, सब तुम मानेंगे नहीं, क्योंकि तुम्हें उस कैश समझ आ गया ये कैश कैसे आता है। एक अलग सब्जेक्ट है कैश फ्लो मैनेजमेंट। एक मैं पढ़ाता होता हूँ अपने बच्चों को, यार अपनी कैश को नहीं कैश फ्लो का मैनेज करना सीखो, ज़िंदगी में बदल जाएगी तुम्हारी, तुम्हें एसेट एंड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट चेंज हो जाएगा तुम्हारा। तो क्लोज कर रहा हूँ मैं। तो ज़िंदगी सर 4 चीज़ों का नाम है, नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल और आज जो लेवल तीनों का आपने लगा के स्केल के ऊपर, आप नॉलेज में कहाँ खड़े हैं, अपने प्रोफेशनल नॉलेज के वाले से बात कर रहा हूँ। आपके स्किल्स कौन से हैं जो रिक्वायर्ड हैं, वो उस पर आपके ये 4 क्रिटिकल स्किल्स जो मैंने बताई आप खुद देख लें। फिर उसके बाद आपका एटीट्यूडनल कहाँ खड़े हैं, और प्लस ये सेल्फ असेसमेंट है। फिर एक असेसमेंट होती है जो मैं या आपके टाइम मिलेगा तो करूँगा। फिर आपकी हैबिट्स कौन सी हैं उसका एनालिसिस डायग्नोसिस करेंगे। जब चारों चीज़ों की तरतीब से ही रखेंगे तो फिर आप एक आम आदमियों के जो समंदर से अब बाहर निकलेंगे, आप आउट हो जाएंगे उस क्राउड से, तो स्टैंड आउट करेंगे तो आउटस्टैंडिंग बन जाएंगे, एक्स्ट्रा हो जाएंगे ऑर्डिनरी से तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएंगे। अपने बच्चों को ये साइंस ऑफ एक्सीलेंस सिखाता हूँ कि यार अगर ये तुम या इस लेवल पे सीख जाओगे, तुम फिर तुम्हारा मुकाबला अब पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, बुरा ना मानिएगा, तुम्हारा यू आर ग्लोबल सिटीजन। ये आज के नए बच्चे को मैं सिखाता हूँ कि वो यार ग्लोबल सिटीजन, आप LDA के लिए पैदा नहीं हुए थे। LDA का टाइम है 3 साल 4 साल 5 साल, आपका सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा। 5 साल 10 साल बाद वो मरने के यहाँ से कब्र में जाके जानी, वो नौकरी का कॉन्सेप्ट अब खत्म हो गया यार। 5 साल बाद 10 साल बाद आप कहेंगे जान सर साहब आए देखिए मैं भी एंटरप्रेन्योर बन गया हूँ, मैंने भी अपना एस्टेब्लिश कर लिया अपना किसी भी किस्म का, चाहे रियल एस्टेट है तो चाहे कोई दुनिया का बिजनेस है, आप करें, लेकिन सीखें, मेरे पास आए, मैं आपके साथ बैठता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, आपको मेंटोर करूँगा, मेरा शौक है ये, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्टअप्स डेवलप करना। तो ये का आपका एक ज़िंदगी का आने वाले 10 20 30 साल का एक रोड पार बढ़ेगा। और अगर आप ये 4 चीज़ में करेंगे और कुछ नहीं तो कम से कम आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा। आपका डिपार्टमेंट चेंज होगा तो मतलब क्या है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन चेंज होगी। मैं कमी नहीं कह रहा ऊपर से DG बदलेगा तो आपका नीचे से चेंज होएगा। ये DG साहब के साथ बैठ के मैं इधर पहुंचा हूँ, मैं उन्होंने से रिक्वेस्ट किया था यार आ जाएँ, आई एम नॉट ए पेड ट्रेनर, मैं कोई पैसे लेके नहीं इधर ट्रेनिंग कराने आया आपको, ठीक है। मैंने कहा था SM इमरान साहब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं, आई एम कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस योर कॉज, और ये दिस इज़ द बिगिनिंग, दिस इज़ नॉट द एंड, यहाँ से हम आगे सफ़र करेंगे। महमूद साहब हम आप लोगों की मुझे फीडबैक मुझे नहीं, महमूद को आप फीडबैक दीजिए, आपको मैकेनिज्म बना हुआ है, आप इनसे जिनसे ईमेल भेजें, एक लाइन 2 लाइनों में आज की लर्निंग लिखिएगा, ताकि आने वाले लोगों के आने वाले आपके डिपार्टमेंट से आपके 2300 बंदे हैं, आप तो आज 25-30 बंदे आए हुए हैं ना, तो मैं चाह रहा हूँ कि 2,500 बंदे तक ये एक्सीलेंस का मैसेज जाए, 212 कैसे थर्मोस्टेट फिट करना है, ताकि हर बंदा सेम पेज पे आ जाए, ठीक है। डिपार्टमेंटल हेड सबसे पहले आए,
ठीक है। HODs की आपको पता है सबसे बड़े फड्डे होते हैं आपस में, कन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इको मैनेजमेंट चल रही होती है, इको की लड़ाइयाँ चल रही होती हैं कंपनियों के दफ्तरों के अंदर, मैं बड़ा था मैं छोटा था, ये तो वो चीज़ें जब निकालेंगे तो फिर जाके आपकी ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ आएगी, ऑर्गेनाइजेशन एक नेक्स्ट लेवल पे जाएगी। कस्टमर सर्विस चीज़ें तो आगे उसका छोटा सा आउटकम है। दो चीज़ों में चेंज कर दें, एक पीपल और दूसरा सिस्टम। जब पीपल चेंज करें, पीपल मैनेजमेंट करें, पीपल डेवलपमेंट करें, जो आज कर रहे हैं हम और फ्यूचर में करेंगे, पर किस्मती से बुरा ना मानिएगा, LD के अंदर ट्रेनिंग का डिपार्टमेंट ही नहीं है। 2,500 बंदों की ऑर्गेनाइजेशन है अबू बकर, और लर्निंग डिपार्टमेंट ही नहीं है। पॉसिबल ही नहीं है कि कोई कंपनी का 1000 बंदों का एम्प्लॉई 500 बंदे और उसमें लर्निंग डिपार्टमेंट ना हो। एक्सक्यूज़ मी, तो मैं इसलिए मैं फारकरीज साहब इनको कहा है, आपके DG साहब को, आपके समय के खुदा के वास्ते अपना लर्निंग डिपार्टमेंट बने और आपका लर्निंग कैलेंडर हो, हर एम्प्लॉई को पता हो कि अगले महीने कैलेंडर ट्रेनिंग आ रही है और मैं इसमें ये ट्रेनिंग अपने नाम में खुद नॉमिनेट करूँ या HOD नॉमिनेट करे आपको, ठीक होगा ना जी। तो वो आप करें और फिर उसके बाद पूरे साल में नंबर ऑफ ट्रेनिंग्स मैंडेटरी हो कि 10 ट्रेनिंग्स प्रोग्राम इसने करने हैं 365 दिनों में, है बादशाह साहब। उसके बाद फिर देखिएगा स्लोली ग्रेजुअली कितनी चेंज आती है आपकी वर्क प्लेस पे यार, एक लेक्चर से नहीं आएगी ये। तो विद दिस वर्ड्स आई क्लोज माई सेशन। एक जुमला मैं अक्सर कह के क्लोज करता होता हूँ कि बेअमल दिल हो तो जज्बात से क्या होता है, धरती बंजर हो तो बरसात से क्या होता है अमल लाजिम तकमील आरजू के लिए, वरना रंगीन ख्यालात से क्या होता है। ये अमल होता है, अमल से बनती है। हमें स्कूल की दीवार पे लिखा होता था, बनती है जन्नत भी जहन्नम भी, ये हाकी अपनी फितरत में नूरी है। वासफ साहब का जुमला आपकी नज़र करता हूँ कि जितनी मेहनत हम अपने ऐबों को छुपाने में लगाते हैं, उससे कम मेहनत में ऐब दूर हो जाते हैं। किसी चीज़ को छोटा देखना हो या दूर से देखो या गरूर से देखो, वरना इस कायनात में कोई चीज़ छोटी नहीं। परेशानी ख्यालात से नहीं, ख्यालात से आती है, ठीक है। ख्यालात ठीक है जी, चेंज होने से ख्यालात नहीं बदलते, लेकिन ख्यालात बदल जाएँ, थाट्स बदल जाएँ तो क्या होता है, हालात बदल जाते हैं। तो ये एक छोटी सी थाट्स चेंज करने का एक छोटा सा एक एंडेवर था। आप अपना भी लाइट आती है, आप अपने आराम से जाके घर में बैठ के इजाज़त नसार लिखिए। फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा लिंक्डइन पे खासकर मेरे साथ कनेक्ट करें। डेली मेरी ट्रेनिंग टॉक्स होती हैं, मेरे 500 टॉक्स हैं। यूट्यूब पे इजाज़त नसार लिखें या CEO टुडे लिखें, ठीक हो गया, ये मेरा मैगज़ीन है, तो वो लिखें और उसके ऊपर आपको 500 मेरी मुख्तलिफ, इवन प्राइम मिनिस्टर के साथ भी मेरी टॉक पड़ी होगी, सारी आपको चौधरी साहब, गवर्नर साहब, सबके साथ मेरी वहाँ टॉक्स होंगी, उनके साथ आप उसमें से देखिए कोई ना कोई अच्छी चीज़ मिल जाएगी। ये जितने भी मोटिवेशन स्पीकर आज के दौर के ऑलमोस्ट 90% मेरे ही ट्रेंड अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें आप कासम अली शाह हो गया, जिस तरह के जितना भी नाम आपको मार्केट में नज़र आते हैं, लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने, दिस इज़ माई प्राइड के मैंने इनको डेवलप किया, हेल्प किया। और वासफ साहब का मैं बताया ना कि उनकी वजह से अल्लाह ने तौफीक दिया कि इस तरफ नौकरी भी छोड़ दी, ये सब चीज़ें छोटी लगनी शुरू हो गई जब ऐसे बड़े बंदों के साथ आप बैठते हैं ना, कुदरतुल्लाह साहब के साथ और ये अपना अशफाक साहब के साथ, बानो कुदसिया के साथ, जब इनकी महफिल अटेंड की तो बाकी सब चीज़ें यहूदे बंदे को छोटे लगने शुरू हो जाते हैं कि यार ये क्या बकवास है। होता है शौक जब नए नए आता है, ये CSS करना है, ग्रेड 18 तो ग्रेड 17। हमारे उस्ताद कहते थे जितने फ़रौन पाकिस्तान में पाए जाते हैं दुनिया में किसी जगह नहीं पाए जाते। तो प्लीज़ ये फ़रौनी जो है ना, ये बड़ी टेम्परेरी है सर, खुदा की कसम बड़ी टेम्परेरी है। अभी पिछले 4 दिन पहले मैं बड़े ट्रॉमा से गुजरा हूँ पर्सनली। माई पर्सनल फ्रेंड वाज अपना एक्सपायर्ड इन माई हैंड्स, ही गॉट हार्ट अटैक, उसी वक्त मौके पे फौत हो गया। मेरे से बातें कर रहा जैसे मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। इतनी बेवफा ज़िंदगी यार, मैं तो 4 दिन से खुद मैंने बल्कि कहा था पोस्टपोन कर देते हैं, लेकिन नहीं यार, मैंने कहा मेरा कमिटमेंट, आई विल बी देयर। तो अल्लाह से अगेन, क्योंकि कोविड ने ये सिखा दिया है कि लाइफ जो है वेरी वेरी बड़ी छोटी सी ज़िंदगी है, और सबसे कीमती चीज़ जो है ना सर जी, जो आपको कोविड से भी बचा सकती है, 2 ही चीज़ें हैं, आपका इम्यून, आपका ईमान, फेथ को स्ट्रॉन्ग करना होता है जिसने, और जिसका इम्यून, जिसकी फिजिकल मेंटल हेल्थ स्ट्रॉन्ग है सर, उसको कोविड भी कुछ नहीं कहेगा। वो कोविड उसी को पकड़ता है जो बेचारा इंटरनली वीक है या फिर उसका ईमान का कोई मसला है, वो डरा हुआ है। तो विद दिस वर्ड्स इजाज़त नसार लिखिएगा, कनेक्ट कीजिए लिंक्डइन पे, डेली करेंगे। आखिरी एक रिक्वेस्ट है आपसे, कभी कोई ज़रूरत पड़ जाए अपने बहन भाई को, किसी ने CSS करना है तो किसी ने PhD करनी है, किसी ने अमेरिका जाना है या कनाडा जाना है, तो आई विल मेंटोर फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आई एम नॉट हियर टू सेल एनीथिंग टू यू गाइस, ठीक है। तो मेरी तरफ आइएगा, हैव अ कप ऑफ टी विद मी। इधर ही जोहर टाउन में मेरा घर भी है और दफ्तर भी है, और सैटरडेज़ को मेरी वैसे भी टॉक्स होती हैं फ्री, 3 से 5। हर बंदा आता है, हज़ारों लोग आते हैं 3 सालों में जब से जॉब छोड़ी मैंने। तो अल्हम्दुलिल्लाह दिस इज़ आवर प्राइड, ठीक है। तो आप अपने बच्चों के साथ आएँ, अपनी फैमिली के साथ आएँ, अपनी बेगम के साथ आएँ, अपने बहन भाइयों के साथ आएँ, हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी विद इजाज़त नसार और नथिंग एल्स, ठीक है। क्यों कि असल में जो अल्लाह ताला की ज़ात है वही आपको जजर देती है, ना कि कोई किसी को दे सकता है।
किसी के खासकर इल्म का, इल्म को ऐसी चीज़ है कि आप इसको ना ख़रीद सकते हैं ना बेच सकते हैं। विद दिस वर्ड्स थैंक यू LDA एंड थैंक यू महमूद, थैंक यू फॉर, मैंने आपको टाइम ज़्यादा ले लिया।